एक बावली कांड ने निकाला मेरे को, भैंड के लंड।
Assalamu alaikum everyone. Welcome to another round of our exciting workshop on final year project business plan. In this session, we have partnered with Jinnah Women University and is brought to you all by Circle Women Pakistan, whose mission is to advance women's economic participation and empowerment through innovative entrepreneurship, advocacy campaigns, and research. We develop and support entrepreneurial and leadership capacity of women and youth in Pakistan to bring about economic growth and social change. Some of the initiatives by Circle include Tech Karo, She Loves Tech, and Elevate. Circle believes that it is critical for Pakistan's progress to invest in youth, especially women, to build their confidence, capacity, and create platforms for them to bring their ideas forward. These workshops are supported by Frederick Naumann Foundation for Freedom, which aims to contribute to the enhancement of soft skills in the field of entrepreneurship, business management, strategic communication, business leadership, and responsible citizenship. Today's session on FIP Business Plan will be conducted by our very talented Asra Rizwan. Asra is a social enterprise working on youth development and leadership. She has worked with local and international partners such as United States Institute of Peace, Hack Embassy, Civic US, and various other to impact 5,000 plus youth across Pakistan. She is a scholarship recipient to Harvard Project for Asian and International Relations, and a current global shaper for the Karachi community of World Economic Forum. Her work on the startup and technology ecosystem of Pakistan has been featured in Tech Juice and Dawn. She has also worked as a freelancer for over 5 years, starting in her sophomore year and later shifting full time. Her freelance portfolio ranges from design and web to content creation and has coached and spoken about freelancing and entrepreneurship at Google Women, Tech Makers, GDG Fest, Kolachi, Google I/O Recap, Startup Weekend, Women in Youth, Isaac Global Exchange Conference, and Code Girls. So, without any further delays, over to you, Asra. Asra, can you hear me? Okay, Asra, you can start with your presentation. Okay, so let me just set up my presentation. So I need like 2 minutes for this. Okay. Okay, am I visible, everyone? Yes, you are visible. Okay, so Assalamu alaikum, everyone. My name is Asra Rizman, and I think the Circle team has already introduced me. So I'm a social entrepreneur with over 5 years of experience working at the intersection of development and technology sector. So the examples I'll be sharing with you are today are somewhat, derived from my experiences and those of my peers. So I didn't know that we were supposed to be in a classroom setting, because I was thinking कि आप सब share कर सकते हैं. So if the circle host can tell me that how will we be engaging, because I was hoping to look at some examples from the students. So how's that gonna work? Do they have a mic there or something?
Yes, they do have a mic. They have a classroom setting. Okay, okay. Awesome. So I just want to know at this moment that which year and what subject area are these students from, so I can sort of give examples according to that. So I'll just need to know that. Is that possible? Is this possible, Jana University, to know that हमारे पास कहाँ से students हैं and वो क्या पढ़ रहे हैं? So, you know, the examples I give today are more related because, you know, this workshop is a bit more technical, like not too much technical, but, you know, I am going to be introducing some concepts around entrepreneurship. So yeah, I can see a volunteer here. You'll have to unmute your mic if you're speaking. Okay. Or maybe you can type it in the chat box. आप chat box में भी type कर सकती हैं. Yes. मैं स्क्रीन को ओपन मिस आप इस स्क्रीन को फुल बोल रही हैं ना इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा बस डायरेक्ट दिस वन हां ये थोड़ी नहीं हो रहा है Okay, sir, can you hear us? Yes, awesome. So आप बता सकती हैं. So which year is this? Ashra, we are from the Department of Commerce. They are Awesome. in course of third year. They are going to finish one of final year. So maybe next year when they study entrepreneurship, हम फिर इसको सिखाने. That's awesome. फिर तो हमें बिल्कुल अब अपनी presentation start करनी चाहिए. And I'll try to give examples accordingly because I think third year is a great time to start thinking about your FYPs. And I'm sure kahin FYPs होते हैं, kahin thesis होता है, but this is a good time to start. So हम थोड़ी सी ये बात करेंगे कि you know what actually is entrepreneurship and how you can basically build a model in under 1 hour. तो एक बिजनेस मॉडल किस तरीके से बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. आई एम श्योर कभी आप लोग सोचते होंगे यू नो कि सारे लोग कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं, कोई फुल फ्लेज एंटरप्रेन्योर्स हैं, किसी ने टेक्नोलॉजी कंपनी स्टार्ट की हुई है, किसी ने फूड बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है. मैं अगर आपको अपने सोशल बिजनेस का बताऊं तो वी सॉर्ट ऑफ ट्रेन यूथ एंड वी आर यूथ डेवलपमेंट एंड लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन. सो हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ लर्निंग प्रोग्राम्स उनके लिए बना रहे होते हैं एंड वी गेट पेड फॉर इट. सो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स को हम देख रहे होंगे आज की क्लास में. सो या this was the intro. अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, you can connect with me on Twitter at @AstraRaison. So let's just right into our agenda. आज का agenda ये था, I was assuming that I was going to teach like a final year class, but third year है तो ज़्यादा अच्छा है. But if you have thought about a final year project, please feel free to share उसका idea. अगर नहीं तो you know it's okay. By the end of this class, I'm hoping कि आप लोगों का brain work कर रहा होगा कि आप नए ideas सोचें. So what you need to do कि अगर इस class में कुछ लोग बैठे हैं जिनका idea है, they can maybe
tell it to the volunteer and she can write it in the chat box ताकि मैं उसके around examples कर सकूं. अच्छा, दूसरी चीज आज जो हम सीख रहे होंगे कि बेसिक तरीन entrepreneurship के principles क्या हैं. And जहाँ कहा जाता है कि that you can only be a successful entrepreneur when you cross 40, हम ये भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, स्पेशली हर कोई मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, इन सारे लोग की एग्जाम्पल्स हमें कोट करते हैं कि ओ दे ड्रॉप्ड आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, बट कोई हमको ये नहीं बताता दैट दे वर कमिंग फ्रॉम एफ्लुएंट फैमिलीज, दे हैड अ लॉट ऑफ मनी एज अ बैकिंग एंड एज अ क्वेश्चन टू फॉल ऑन. तो मैं आपको पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां बताऊंगी जो कि यूनिवर्सिटी के बाद ही उन्होंने अपनी कंपनीज स्टार्ट की, एंड दे आर डूइंग वेल एंड दे स्टार्टेड स्मॉल. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब फंडिंग रेस करने की तरफ जा रहे हैं. सो इसके साथ साथ हम ऑब्वियसली बिजनेस मॉडल कैनवस की बात करेंगे कि ये होता क्या है. ठीक है, ये काफ़ी इंटरैक्टिव किस्म की चीज़ है जो कि आप ना सिर्फ अकेले कर सकते हैं, बट ज़्यादा मज़ा आएगा कि अगर आपकी FYP टीम मेंबर्स हैं. मुझे नहीं पता जिना यूनिवर्सिटी में कैसा होता है, मेरी यूनिवर्सिटी में था कि आप अकेले भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 2 लोगों के साथ, तो दैट वुड मेक लाइक अ टीम ऑफ 3. तो इस तरह का भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं. तो हम ये करेंगे और एक्सरसाइज फिर हम एंड में करेंगे. एक बिजनेस मॉडल आप लोग मुझे प्रपोज करेंगे, आप लोग बिजनेस प्रपोज करेंगे और उसका बिजनेस मॉडल मैं आप लोगों के साथ मिलके बनाऊंगी. सो वी आर गोइंग टू डू दैट. सो लेट्स begin, and I'm sure you all are ready to start. It's a Monday morning. सुबह सुबह सोच रहे होंगे क्यों इस ऑनलाइन लेक्चर में हमको बिठा दिया है, बट हम देखेंगे how we can make it fun, and feel free to share your experiences, share your ideas, and we will sort of try to incorporate in the class. अच्छा, सो सबसे पहले यहाँ पे ये जो 4 अल्फाज लिखे हुए हैं ये डिफाइन करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के 4 प्रिंसिपल्स. बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के. ये एक सरस्वती होती थी, उन्होंने सॉर्ट ऑफ एक कहा कि व्हेन यू नीड टू स्टार्ट समथिंग यू नीड टू सॉर्ट ऑफ टेक एन अकाउंट ऑफ दीज 4 थिंग्स. तो फिर आप देख सकते हैं कि आर यू रेडी टू स्टार्ट अ बिजनेस. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, मगर हाउ यू कैन स्टार्ट स्मॉल. हम में से सब लोगों को पता है करीम के बारे में. करीम जब स्टार्ट हुई तो करीम ने ये सोचा कि हम इतने सारे फीचर्स बनाएंगे अपने कस्टमर्स के लिए, बट उन्होंने ये कहा कि हमें जल्दी टेस्ट भी करना है कि क्या लोग एक ऐप के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू टैक्सीज ऑर्डर करेंगे, टैक्सीज मंगाएंगे कि नहीं. सो उसके अराउंड उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम लेट्स से ये 100 फीचर्स अपनी एप्लीकेशन में डालना चाहते हैं, मगर हम स्टार्ट करते हैं 6 फीचर से और हम बिल्कुल 2 हफ्ते के अंदर अपनी एप्लीकेशन लाइव कर देते हैं. उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लाइव कर दी एंड उन्होंने बाद में ये रियलाइज किया कि वो जो हम सोचते थे एक कि वो इतने 100 फीचर्स डालेंगे तो उनकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी. So sometimes हम बहुत दूर की सोच रहे होते हैं. So instead of that we can just focus on what we have. So bird in hand क्या चीज़ होती है? आपने ये देखना है कि आप कौन है, आप कहाँ रहते हैं, आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल नेटवर्क क्या है. ठीक है, फिर आपको ये देखना है कि अच्छा भाई आई एम स्टूडेंट इन जिना यूनिवर्सिटी, मैं कॉमर्स कर रही हूँ और मुझे साथ साथ कंप्यूटर साइंस का भी शौक है तो मैं थोड़ी बहुत कोडिंग भी कर लेती हूँ, या मुझे राइटिंग का शौक है तो मैं कंटेंट राइटिंग भी कर लेती हूँ, या मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं हैंडीक्राफ्ट्स बनाती हूँ. ठीक है, सो आप सारी चीज़ें सोच रहे हैं, इनमें स्किल्स भी आ गई आपकी, इनमें आपका नेटवर्क भी आ गया, इनमें मे बी आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, मे बी आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपने कोई पार्ट टाइम जॉब की हुई है, कोई आपने फ्रीलांस काम किया हुआ है. सो बर्ड इन हैंड यानी ये आपके हाथ में ये सारी की पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो आपकी की स्ट्रेंथ्स हैं. ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल होता है द लेमनेड प्रिंसिपल. ये हमको कहता है कि सबको पता है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स
you know what you're going to do. और इसका मतलब ये होता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जिसको आपने एक्सेप्ट नहीं, लाइक एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. सो व्हेन लाइफ गिव यू लेमन्स, आपको क्या करना है, आपने उसका लेमनेड बनाना है और आपने पार्टी करनी है. सो यू ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर यू नो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस. जब आप एंटरप्रेन्योर होते हैं, आपको कभी भी नहीं पता होता कि यू नो मे बी आपका कोई वेंडर है, उसने बैकआउट कर लिया. मे बी लाइक पेंडेमिक, हमारे स्टार्टअप लाइक हम पूरी एक प्लान बनाए हुए थे कि 2020 में हमारी 5th एनिवर्सरी होनी है, हम इतनी सारी चीजें करेंगे, विल डू अ कॉन्फ्रेंस एंड ऑल ऑफ दैट. द पेंडेमिक हैपेंड. ठीक है, सो अब क्या करें, तो हम अपने सारे प्रोग्राम्स को डिजिटल लेके गए. सो यू नो इस तरह की चीजें दैट यू हैव टू मेक अ लेमनेड आउट ऑफ इट. ये नहीं कि अच्छा भाई लीमू खट्टे हैं एंड यू नो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डूइंग नाउ. सो लेमनेड प्रिंसिपल ये कहता है कि ठीक है, entrepreneurship is all about risk taking and being daring, but it also means to be prepared for situations जहां आपको लगता है कि आपके लिए वो मुश्किल situations होंगी. तीसरी चीज जो होती है अफोर्डेबल लॉस जिसे कहते हैं. कभी भी किसी चीज में यू डू नॉट इन्वेस्ट विदाउट डूइंग रिसर्च. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लोग हैं जिनके फैमिली बिजनेस है, यहाँ पे बहुत सारे जिसमें फेसबुक ग्रुप्स में एडेड हूँ, जहाँ पे होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो क्या कहते हैं बहुत स्मॉल मार्जिन पे काम करती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई क्लोथिंग बिजनेस है तो और होम बेस्ड भी है, तो यू नो दे विल मेक लाइक not 100 pieces of one design, but they'll make like 20-30 to see कि उनका डिजाइन किस तरह चल रहा है, are people really buying from their website. So you know affordable loss, एकदम jump नहीं करना, but थोड़ा बहुत you know you have to be ready to take some loss. So ये affordable loss principle होता है कि do not be an idiot and आप पूरा like figure out करें how you are going to be go about it. और जरूरी नहीं है कि लॉस हमेशा पैसों का हो. टाइम आप कितना दे रहे हैं इसको, ठीक है. आपका मटेरियल लॉस भी हो सकता है, कोई आपने चीजों का स्टॉक रखा हुआ है एंड लेट्स से बारिश हो गई एंड ऑल ऑफ दैट गेट्स ruined. सो इस तरह की चीजें अफोर्डेबल लॉस के अंदर आती है. सो यू नीड टू नो कि यार ये इतना लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है. For example, if the pandemic happened, तो मैं 6 महीने I can give salaries to my team without being काम तो कुछ हो नहीं रहा, but the salaries are going. So all of these things are a part of affordable. क्या होता है, हम सब सिंध में रहते हैं, हमें सिंध की जो खासियत है रल्ली उसका पता है. तो जो लोग जानते हैं रल्ली के बारे में, उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट पीसेस ऑफ क्लॉथ और डिफरेंट धागों से वो पैच कर रहे होते हैं. तो शुरू में लगता है कि यार ये तो पूरा मिसमैच्ड है, बट जब वो रैली बन के आती है वो इंतहाई एक खूबसूरत चीज होती है. तो ऐसे कलर्स जो के साथ नहीं हो रहे थे, बट उन्होंने इतना अच्छा एक पर्सनल, प्रोफेशनल और एकेडमिक नेटवर्क में कौन कौन लोग हैं. मे बी आपके साथ आपकी यूनिवर्सिटी की कुछ दोस्तें हैं जो कि आप उनके साथ सिर्फ इसलिए नहीं बिजनेस स्टार्ट करना चाहते कि वो आपकी दोस्त हैं, बट उनके पास स्किल सेट है, ठीक है. फिर आप ये देखते हैं कि लेट्स से आपकी फैमिली में कोई है जो कि ऑलरेडी एक बिजनेस रन कर रहे हैं, बट उनकी कोई डिजिटल प्रेजेंस नहीं है. सो आप सोचते हैं कि यार अगर इनके बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाया जाए तो इनकी सेल्स बढ़ सकती है. सो क्रेजी क्विल्ट का मतलब ये है कि आप पार्टनरशिप्स करें, और पार्टनरशिप्स इतनी अनएक्सपेक्टेड होंगी कि आपने सोचा नहीं होगा कि यू नो आप इनके साथ पार्टनर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर थॉट कि मैं सर्कल के लिए क्लास पढ़ा रही होंगी, बट दिस इज अ पार्टनरशिप दैट आई डिड, और अब वो मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा. सो it's all about making partnerships, and at the end of the day it's going to help your business look like a beautiful rally. So iska concept ये है.
So now if we move further, if you can see this canvas, I hope you can. ये एक बहुत बड़ा सा कैनवस है. अक्सर लोग इसको देख के इंटिमिडेट हो जाते हैं, बट इसको फिल करने में बहुत मजा आता है. ठीक है, और सबको लगता है कि इसको हमें लेफ्ट साइड से की पार्टनर्स से स्टार्ट करना चाहिए एंड देन वी मूव ग्रेजुअली, बट ऐसा नहीं होता. सो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ बिजनेस मॉडल कैनवस से. सो एक ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि यार जब भी बिजनेस प्लान लिखने की बात आती है, आपको 20 पेज, 50 पेज, 100 पेज के डॉक्यूमेंट्स लिखने होते हैं. मार्केटिंग यूं होगी, टीम यूं होगी, एक्टिविटीज ये होंगी, पैसे यहाँ से आएंगे, ऑल ऑफ दैट, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनेगा. सो हाउ अबाउट ऐसे स्टार्टअप्स या ऐसे लोग जिनके पास एक इतना बिजनेस नहीं है, बट वो सिर्फ एक बिजनेस मॉडल बना के ये टेस्ट करना चाहते हैं दैट इफ दे स्टार्ट समथिंग, is it going to be what you could say feasible, and is it going to actually be a business. तो इसके लिए उन्होंने ये कैनवस बनाया. कुछ लोग कहते हैं कि ये 20 मिनट में भी फिल हो सकता है, कुछ लोग इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. अगर आपकी टीम है तो आप सब मिलके करें, और अच्छा होगा कि आप सब अलग अलग बैठ के करें इसको एंड देन मर्ज इट. सो यू कैन सी कि एक ही बिजनेस को हर कोई कितने अलग तरीके से सोचता है. सो ये पूरा कैनवस है, इसको कहते हैं, हम इसको फिल करेंगे आज की क्लास में. एंड द आइडिया इज कि जब नेक्स्ट ईयर आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का सोच रहे हो, तो आप सिर्फ उसको एक ऐसा प्रोजेक्ट ना सोचें कि यार जो कोर्स का हिस्सा है और ये मैं प्रोजेक्ट बना लूंगी, सो बस आई गेट गुड मार्क्स. बहुत अच्छा होगा कि एक जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो, ना तो सिर्फ वो आपकी जो आपने पिछले 4 सालों में पढ़ा उसकी डिमॉन्स्ट्रेट करे, बट आपकी लेट्स से बिजनेस मॉडल स्किल्स को भी डिमॉन्स्ट्रेट करे. सो इस क्लास के बाद अगर कोई अपना बिजनेस मॉडल शेयर भी करना चाहता है तो मुझे ईमेल कर सकता है और मैं उनको फीडबैक जरूर दूंगी. सो इसके ऊपर बहुत कोर्सेज होते हैं, लाइक बहुत वर्कशॉप्स होती हैं. मैंने भी एक, I was very young at that time when I attended this workshop at IBA. तो वहाँ पे we had this प्रोफेसर कमिंग इन फ्रॉम कतर जो कि सिर्फ इस कैनवस की ही वर्कशॉप कराते थे, और वो 2 फुल डेज की वर्कशॉप थी. सो आई एम ट्राइंग टू कंडेंस माई लर्निंग हियर एंड सी हाउ वी कैन कवर दिस इन 2 hours. इसके साथ साथ देयर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑनलाइन, आप मेरी क्लास के बाद जाके देख सकते हैं. जैसे ये बिजनेस मॉडल कैनवस है, फिर वैल्यू मॉडल है, फिर टीम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल है. तो इस तरह के बहुत सारे कैनवसेस हैं दैट यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन. फिर जब आप अपनी सीवी में डालेंगे दैट यू नो अबाउट दिस, देन इट वुड बी ऑसम. अगर आप किसी स्टार्टअप के साथ काम करना चाहते हैं या किसी और ऐसी छोटी कंपनी के साथ जिनको ऐसे लोगों की जरूरत है जो बिजनेस मॉडलिंग कर सकें. सो लेट्स हॉप ऑन टू, अब हम इस कैनवस के साथ करेंगे क्या. मैं आपको बेसिकली एक बिजनेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में ब्रेक करके बताऊंगी इस कैनवस को. सो द फर्स्ट थिंग व्हेन यू लुक हियर यू कैन सी कि मैंने सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग कर दिया है. ठीक है, पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो है कस्टमर रिलेटेड. अच्छा, कस्टमर रिलेटेड कंपोनेंट में क्या क्या चीजें आती हैं हमारे पास. वी हैव कस्टमर सेगमेंट्स के कस्टमर कहाँ से आ रहा है, बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू कस्टमर है, B2C जिसको कहते हैं, B2B2C है यानी बिजनेस टू कस्टमर, B2G है बिजनेस टू ग्रुप्स. सो इस तरह की सारी चीजें आम कस्टमर सेगमेंटेशन में आ जाती हैं. फिर इसमें ये आता है फॉर एग्जाम्पल के मास मार्केट में कोई चीज आप लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि खाने पीने की चीज हो गई, या कोई नीश मार्केट में आप कर रहे हैं जैसे टेक गैजेट्स हो गए, वो हर कोई नहीं ले रहा होगा बट एक सर्टेन नीश मार्केट के लोग ले रहे होंगे. फिर इसमें कस्टमर रिलेशनशिप्स आते हैं कि आप अपने कस्टमर्स को खुश कैसे रखते हैं और आप उनसे भी कैसे वैल्यू लेते हैं. एंड देन चैनल्स के आप अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचते हैं. दूसरी मेन चीज जो है इस कैनवस की वो है ऑफरिंग, कि आपका बिजनेस करता क्या है और वो क्या वैल्यू दे रहा है कस्टमर्स को. So that is something that is a major part of the what you could say the business model canvas. फिर एक part आता है आपका
फाइनेंसेस का। अच्छा, फाइनेंसेस में दो चीजें आती हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम्स कि आपके पास पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे होंगे, दूसरा कॉस्ट स्ट्रक्चर कि आपके पैसे खर्च कहाँ कहाँ हो रहे होंगे। ठीक है, तो हम ये बात करेंगे कि एक हम बिजनेस मॉडल उठाएंगे एंड वील सी हाउ टू मैप दिस। आखिरी चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली क्या क्या आता है कि ठीक है भाई, आपके पास कस्टमर ये है, आप इनको ये वैल्यू दे रहे हैं और आपका इतनी रेवेन्यू स्ट्रीम और कॉस्ट स्ट्रक्चर बन गया है। बट अब उनको ये वैल्यू पहुंचाने के लिए आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए और कौन कौन से पार्टनर्स चाहिए। हमने जैसे पिछली उसमें जो देखा क्रेजी क्विल्ट वाली एग्जाम्पल में कि स्टार्टअप्स के लिए पार्टनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आपके पास शायद बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम हो, थोड़े से पैसे हो, शायद ना भी हो, बट आइडिया बहुत अमेजिंग हो, तो आपको दूसरे लोगों के साथ पार्टनर करना होता है। और हम हमेशा पार्टनरशिप को एज अ बिजनेस पार्टनरशिप समझते हैं कि शायद कोई इसमें पैसा डालेगा एंड यू नो शेयरिंग होगी। नो, पार्टनरशिप्स बहुत तरीके की होती हैं। कोई आपका मार्केटिंग पार्टनर बन सकता है, कोई आपको हेल्प कर सकता है लोगों से मिलने के लिए, नेटवर्किंग कराने में, कोई आपकी प्रोडक्ट्स स्टॉक कर सकता है किसी सुपरमार्केट में। ठीक है, सो यू नो जरूरी नहीं है कि ये पार्टनरशिप्स मॉनेटरी पार्टनरशिप्स हों। So if we move further, अब I'm going to tell you कि हर segment में जो ये canvas के blocks हैं उनमें क्या क्या चीजें add होंगी. Before that, I can maybe actually show you कि how it looks like. Just let me look it up. Okay, here it is. So I'm going to stop share. ठीक है, आई होप यू गाइस कैन सी दिस। ये ऐसा दिखता है, मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, एक बड़ी सी शीट के अंदर एंड आप सब मिलके इसको फिल कर सकते हैं। लाइक यू कैन प्रिंट इट ऑन अ ह्यूज चार्ट पेपर। अगर प्रिंट नहीं कर सकते तो ये बॉक्सेस यू कैन मेक। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक एंड नाउ वी आर गोइंग टू फिल इट इन द सर्टेन ऑर्डर। So I hope you guys can see this. I'm going to go back to screen sharing. On. अच्छा, अभी तक कोई सवाल है तो you can maybe ask someone to write them in the chat box and I can answer them. और जहाँ भी session boring लगे, you can let me know and I can maybe spice it up with some examples. Okay. ठीक है जी। So customer segments में जैसे बात की हमने कि क्या क्या चीजें आती हैं। First of all कि हम value किसके लिए create कर रहे हैं। अगर मेरा बिजनेस है यूथ फोकस्ड, तो मैं कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के लिए कर रही हूँ अपने। इज देयर अ गर्ल स्टैंडिंग? इज एवरीथिंग ओके? बिकॉज द माइक इज म्यूट एंड आई कैन नॉट थिंक। ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज फाइन। सो कस्टमर सेगमेंट्स के अंदर ओके, सो दिस ओके ऑसम कि हम वैल्यू किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं यूथ फोकस काम करती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मैं कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एंगेज करना चाहूँगी, ना कि स्कूल के स्टूडेंट्स को, बिकॉज वो फिर एज ग्रुप काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स कौन है? ठीक है, फॉर ओपन माइक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स
are those जिनको opportunities का पता नहीं होता, इतनी सारी student opportunities हैं, scholarships हैं, grants हैं, so they're looking for some help to be connected, so we sort of help them out. फिर हमारे important customers colleges and universities हैं who do not have the infrastructure to do a lot of student activities, so we support them and we build their teams and वहाँ पे हम एक sustainable culture बनाना चाहते हैं. And एक चीज होती है personas. ये भी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है. पर्सोनास में आप बेसिकली प्रोफाइल बनाते हैं एक अपने कस्टमर की, एंड उस प्रोफाइल के अंदर आप हर चीज लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर है, एक जिना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, वो सेकेंड ईयर में है, वो कंप्यूटर साइंस पढ़ रही है. शी गोज टू यूनिवर्सिटी बाय वैन और उसको लंच में चाट गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है. फिर वो घर वापस आती है तो वो ऑनलाइन कोर्सेज देखती है और वो अपनी स्किल बिल्डिंग साइट पे कर रही है और वो कोडिंग सीख रही है. इसके साथ साथ वो फेसबुक ग्रुप्स में है और वो अपॉर्चुनिटीज को देखती रहती है, बट कभी कभी शी फील्स कि उसके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है या स्किल्स नहीं है कि वो उन चीज़ों पे अप्लाई करे. So, आपने देखा कि मैंने क्या किया, मैंने एक पूरी स्टोरी बनाई एक पर्सन के बारे में. अक्सर लोग तो जो पर्सोनास बनाते हैं, आप इसको भी लुकअप कर सकते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए, उसमें वो उनकी क्या कहते हैं समहाउ फोटो भी डालते हैं कि दिस इज हाउ दे लुक लाइक, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका कस्टमर कौन है. ठीक है, मेरे कस्टमर्स सारी यूथ नहीं है, या एक क्लोथिंग बिजनेस है उसका कस्टमर सारी लड़कियां नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एक कोई क्लोथिंग ब्रांड है जो वर्किंग वुमेन के लिए कपड़े बनाती हैं, जिसके अंदर ज्यादा डिजाइन नहीं होता, फूल पत्तियां नहीं होती, बेसिक डिसेंट कपड़े होते हैं. सो उनके इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स वो होंगे जो कि जो औरतें काम पे जाती हैं, जो कि एक सर्टेन सैलरी रेंज में अर्न करती हैं और वो महीने का एक ड्रेस तो लेती हैं. ठीक है, सो इस तरह करके वो अपने कस्टमर पर्सोनास बनाते हैं. सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू. अब कस्टमर सेगमेंट्स में डिफरेंट सारी चीज़ें आती हैं. जैसे मैंने पहले बात की थी, मास मार्केट आपकी प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल होगी, आप सारे लोगों को दे रहे होंगे. मास मार्केट में कौन कौन सी एग्जाम्पल्स होती हैं? फॉर एग्जाम्पल आटा, चीनी, असेंशियल चीज़ें, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट एल्स, ऑयल, गैस, transport, you introduce maybe a new toothpaste brand, ऐसी चीज जो हर कोई यूज कर रहा है. ठीक है, एंड मास मार्केट में ऑब्वियसली बैरियर ऑफ एंट्री भी ज्यादा स्टार्ट क्या होगी, ब्लॉक में बात कर रहे होंगे. ठीक है, क्या बहुत ही कोई आपकी नीश मार्केट है, जैसे मैंने क्लोथिंग ब्रांड की बात की, क्लोथिंग ब्रांड फॉर वर्किंग वुमेन, तो मैं अपना नीश सेलेक्ट करूँ. नीश इज बेसिकली स्पेसिफिक एरिया. सीरीज बना रही हूँ अभी पाकिस्तान के अंदर, फिटनेस नीश बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत सारे लोग फिटनेस कंटेंट बना रहे हैं. सो फिटनेस एक नीश हो गया, हेल्थ नीश भी इसको हम कहते हैं. सो डिफरेंट तरह के ये नीचेस होते हैं. ये कि मे बी आपकी जरूरी नहीं है कि एक आज जो चीज आपकी लोग ले रहे हैं वो दूसरी जगह पे मे बी बाय एज ग्रुप, and that's how you can actually वो है एक diversified business. आपकी प्रोडक्ट ऐसी है which एक certain niche में रहते हुए different sort of people from age group are what you could say income size के लोग उससे ले रहे हैं, आपके बिजनेस से एंगेज कर रहे हैं. एंड आखिरी चीज है कि मल्टी साइडेड प्लेटफॉर्म.
कि आपने ऑन ग्राउंड, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑन ग्राउंड प्रोग्राम्स करते हैं, फिर हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी करते हैं. सो यू आर सीइंग कि जब हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते हैं तो हम पूरे पाकिस्तान से लोगों को एंगेज कर सकते हैं. जब हम ऑन ग्राउंड कर रही हैं ट्रेनिंग्स, हम सिर्फ कराची के स्टूडेंट्स को एंगेज कर पाते हैं. सो प्लस बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आपने देखे होंगे. हम अगर एक न्यूज़पेपर की बात करते हैं, सो न्यूज़पेपर का रेडियो स्टेशन भी हो गया, उनका एक ऑनलाइन ब्लॉग टाइप चीज भी हो गई. ब्लॉग है उनके कस्टमर्स, हर कोई है जो उनके कस्टमर्स, यू कैन सी कि अब वो सेगमेंटेड हो गए. जो लोग अखबार पढ़ते हैं, जो यंग बच्चे यूट्यूब देखते हैं, जो आंटियां टीवी देखती हैं. सो यू कैन सी हाउ. सो इफ वी मूव फर्दर, अब आपने देखा कि हमने कस्टमर सेगमेंट्स के बाद कस्टमर रिलेशनशिप या कस्टमर चैनल की बात नहीं की के ऊपर. नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन वैल्यू प्रोपोजिशन, हमने ये देखना है कि व्हाट वैल्यू डू वी डिलीवर टू द कस्टमर. हम उनको एक करिकुलम दे रहे हैं, क्या हम उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या हमारे जो क्लोथ्स हैं वो सस्टेनेबल मटेरियल से बने हुए हैं कि कि वो एनवायरनमेंट पे पूरा इफेक्ट क्रिएट करते हैं. क्या हम एक ट्रैवल मार्केट प्लेस हैं जो कि बहुत बजट फ्रेंडली ट्रिप्स कराती हैं लोगों को. सो वैल्यूज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप. फिर हम कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करें. अगर मैं एक ट्रैवल स्टार्टअप हूँ और मेरे कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि खुद से नहीं फिगर आउट कर सकते कि उनको कौन सी ट्रिप लेनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, सो मैं उनको हेल्प आउट कर रही हूँ. फिर मैं उनको सिर्फ गाइड भी नहीं करी, मैं उनके लिए पूरा एक टूर डिज़ाइन भी कर रही हूँ. फिर मैं उनके लिए वो चीज़ें बुक भी करा रही हूँ और फिर मैं उनको सेल भी कर रही हूँ. ठीक है. फिर कौन सी अगेन कस्टमर नीड्स आर वी सेटिस्फाइंग. ज़रूरी नहीं है कि उनको सिर्फ हेल्प चाहिए हो, गाइड चाहिए हो कि वो क्या करें. वो जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे उनके खाने पीने का इंतज़ाम, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, ये सारी चीज़ें एड अप हो सकती हैं. एंड व्हाट बंडल्स ऑफ products and services are we offering to each customer segment. फॉर एग्जाम्पल यंग बच्चे जा रहे हैं, आपको पता है कि यंग बच्चे वोंट बी ट्रैवलिंग इन अकेले अकेले. ठीक है, तो वो ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं. सो मे बी आप उनको एक सर्विस दे सकते हैं ग्रुप ट्रैवलिंग की और उस पर उनको डिस्काउंट मिल जाए. फिर यू कैन डू लाइक फॉर न्यूली मैरिड कपल्स, यू कैन मे बी स्टार्ट लाइक अ हनीमून ट्रैवल थिंग. सो इस तरह की चीजें. सो अब वैल्यू कहाँ कहाँ होती हैं. आप जैसी प्रोडक्ट मार्केट में 10 लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई हुई होगी. ठीक है, आप जैसी सर्विस भी. सो थोड़ा मैं बता दूं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस वो होते हैं जिनके पास एक प्रोडक्ट होता है विच मेक सेंस, और सर्विस बेस्ड बिजनेस होते हैं जो कि एक कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं. क्लीनिंग सर्विस हो गई, लेट्स से डिलीवरी सर्विस हो गई, दैट्स लाइक अ सर्विस बेस्ड बिजनेस. इस तरह की चीजें आ जाती हैं. सो दैट्स हाउ इट गोज. अच्छा, अब जो डिफरेंशिएशन फैक्टर भी इसको कहा जाता है, इसको वैल्यू प्रोपोजिशन भी कहा जाता है, इसके डिफरेंट टर्म्स होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट, यूएसपी भी कहा जाता है इसको, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो दूसरे वाले से क्यों बेहतर है. क्या वो नई प्रोडक्ट है, उसमें कोई ऐसे फीचर्स हैं जो अभी किसी और ने इंट्रोड्यूस नहीं कराए हैं, क्या उसकी बेटर है, क्या वो कस्टम होगी बट आपके कलर एंड आपके डिजाइन की होगी. देन क्या आपकी वैल्यू है कि जस्ट गेटिंग द जॉब डन. ठीक है. फिर क्या आपकी लग्जरी ब्रांड है कि ओ भाई हम सबको खादी के कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है. सो हम खादी के कपड़े नेसेसरीली इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो अच्छे हैं या उनकी क्वालिटी अच्छी है या वो बहुत लंबे चलते हैं. हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज एक ब्रांड स्टेटस है. ठीक है, तो क्या आपकी ब्रांड उस तरीके की है, प्राइस कंपेटिटिव है, आप सेम चीज सेम वेंडर से चीजें ले रहे हैं तो कम कॉस्ट में दे रहे हैं,
रिस्क कम है, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने अब ऑर्गेनिक खाना पीना बनाना स्टार्ट किया है, फॉर एग्जांपल जो कि केमिकल फ्री होता है। सो लोग बना रहे हैं ऑर्गेनिक घी, ऑर्गेनिक ऑयल्स, ऑर्गेनिक मिल्क, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो हैं। तो वो ऑब्वियसली अगर वो सिर्फ अपने आप को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो उसकी एक्सेसिबिलिटी कम है, मगर अगर वो किसी स्टोर पे स्टॉक करने लगे अपनी ऑर्गेनिक चीजें तो उनके कस्टमर्स के लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई। सही है। फिर दूसरी चीज हो गई आपकी कन्वीनियंस एंड यूजेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अब हर कोई वायरलेस ईयरफोन्स लेने लगे हैं। क्यों? बिकॉज वायर्स खराब हो जाते हैं, टेंगल्ड हो जाते हैं और यू कीप फॉरगेटिंग देम, और उनकी लाइफ with wireless headphones उनकी convenience and usability बढ़ रही है. So these are just some of the examples कि आप fashion में is making bottles made that does not leave harmful chemicals in water, that does not let the water absorb those chemicals. मेरा price point बहुत अच्छा है, मेरे पास different designs, customizations available है कि कॉलेज गोइंग लोग भी वो वाटर बॉटल्स यूज कर सकते हैं, जो लोग जिम जाते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, जो लोग ऑफिसेज जाते हैं। सो आप जाके क्या कहते हैं मॉल से या इम्तियाज से वो वाटर बॉटल ले तो सकते हैं, बट उसमें वो बात नहीं है। सो यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन। सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आपकी वैल्यू का हिस्सा होती हैं। अच्छा, जब आपने अपना कस्टमर सेगमेंट डिफाइन कर लिया और उसके बाद ये भी डिफाइन कर लिया कि आप उनको वैल्यू क्या दे रहे होंगे, आपकी प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, अब आप इस पे बात करेंगे कि आप उन लोगों तक पहुंचेंगे कैसे। एंड उन लोगों तक पहुंचने से पहले आई जस्ट टेक अ सिप ऑफ वाटर, सो लाइक गिव मी 2 seconds and then we'll talk about channels. ओके, सो चैनल्स में बेसिकली ये सारी चीजें आती हैं कि आप इंगेज कैसे करें और कस्टमर किस तरह से इंगेज करना चाहता है। समटाइम्स ऑनलाइन बिजनेसेस के नीचे लोगों ने लिखा होता है कि आपकी फिजिकल स्टोर नहीं है जहां हम आप आके आपकी चीजें देख लें। सो मे बी जहां एक कस्टमर सेगमेंट ऑनलाइन बाइंग से व्हाट यू कुड से उसको कन्वीनियंट लगता है कि ओ मैं ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दूं और मेरे घर पे आ जाए। कुछ लोग ऑब्वियसली ऐसे होते हैं जो कि देखना चाहते हैं फिजिकली कि वो प्रोडक्ट क्या है, तो वो फिजिकल स्टोर्स के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, फिर अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आप ये देखें कि अभी आप अपने कस्टमर्स को कैसे रीच कर रहे हैं। क्या आप सोशल मीडिया के थ्रू रीच कर रहे हैं? क्या आप अपनी यूनिवर्सिटी पे आपने कोई स्टॉल लगाए हुए हैं? क्या आप मॉल्स में जाके अपने फ्लायर्स बांट रहे हैं? सो किस तरह आप उनको रीच कर रहे हैं? जो बड़े बिजनेसेस हैं वो मे बी टीवी एड चला रहे होंगे टू रीच द कस्टमर्स। फिर हाउ आर आवर चैनल्स इंटीग्रेटेड? इसका मतलब ये है कि हर बिजनेस के लिए कस्टमर्स को रीच करने की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होंगी। ऑनलाइन बिजनेस के लिए ऑफ कोर्स सिर्फ सोशल मीडिया मेक सेंस करता है, बट यू नीड सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड मार्केटिंग एज वेल। हाइब्रिड मार्केटिंग किस तरह हो सकती है? मे बी आपके सेल्स पर्सन हो या आपने कैंपस एम्बेसडर्स बनाए हुए हो और आप फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहे हो, तो फिजिकली वर्ड ऑफ माउथ भी घूम रहा है एंड ऑनलाइन भी हाइप क्रिएट हो रही है। सो दो चैनल्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, फिजिकल मार्केटिंग भी एंड ऑनलाइन मार्केटिंग भी। देन आपको करनी होगी थोड़ी सी टेस्टिंग कि क्या अच्छा चल रहा है। फेसबुक पे ऐड लगाने से ज्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं या कोई एक इवेंट को स्पॉन्सर करके अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा के ज्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं। सो ये देखना होगा। फिर ये भी देखना होगा कि कॉस्ट एफिशिएंट क्या होता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक के फेसबुक पे ऐड लगा दिया बस ठीक है, 5,000 का ऐड लगा दिया,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं वर्क करता, बिकॉज इफ यू आर अ बिग बिजनेस यू नीड टू हैव अ बिग बजट फॉर इवन फेसबुक मार्केटिंग एज वेल. सो ये सारी चीजें यू हैव टू डिसाइड. फिर एक इसके अंदर लिखा है कि हमारे चैनल्स कस्टमर के रूटीन से कैसे मैच करते हैं. आपने बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज देखते होते हैं, वो रुक के कॉफी लेते हैं, अपना डोनट लेते हैं और वो अपनी गाड़ी में बैठ के जाते हैं. सो उनका एक कल्चर है ड्राइव थ्रूज का. यहाँ पे ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट्स इतने नहीं है. सो ड्राइव थ्रू में ये होता है कि आप बस अपनी गाड़ी में गए, आपने ऑर्डर प्लेस किया, फिर आप आगे गए, आपने ऑर्डर पिकअप किया एंड देन यू आर गुड टू गो. सो वहाँ पे कल्चर ही यही है कि आपको ब्रेकफास्ट घर पे नहीं, ऐसे करके हम जाके कॉफी लेने. दैट्स व्हाई दे हैव अ लॉट ऑफ कॉफी प्लेसेस. सो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर के वर्क रूटीन से अपना बिजनेस और अपना चैनल इंटीग्रेट ब्रांच, और उसको डिजाइन इस तरह किया है कि ड्राइव थ्रू वो हो सके. अच्छा, अब चैनल्स जब आप बनाते हैं ना, सो इसमें हर चैनल की व्हाट यू कुड से कोई नीड होगी. पहली नीड ये होगी अवेयरनेस. ठीक है, अवेयरनेस मैं किस तरह करूं, मैं कोई वीडियो बनाऊं या मैं लोगों से जाके खुद बात करूं. लेट्स से मेरे मोहल्ले में आंटीज का एक ग्रुप है जो कि कमिटीज वगैरह डालता है, और वो सब जब भी गर्मी आती है वो सारे लोग जाके लॉन के ड्रेसेस लेते हैं. सो मैं उनसे बात करूं कि यार इस दफ़ा आप मुझे ट्राई करें, मैं एक यंग बिजनेस वुमेन हूँ और मैं अपना क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है. या आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी पेज बनाएं, या आप व्हाट्सएप मैसेज सबको ब्रॉडकास्ट करें. आपके जो देयर आर डिफरेंट वेज टू अवेयर योर कस्टमर्स. दूसरी चीज कि कस्टमर से पूछें कि वो क्या चाहते हैं. ठीक है. एंड क्या जो हम उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट वाकई यूनिक है कि नहीं. सो लेट देम टॉक टू देम. कस्टमर फोकस काम है. ये आप एक ग्रुप डिस्कशन के थ्रू भी कर सकते हैं, आप फॉर्म्स एंड सर्विस के थ्रू भी कर सकते हैं. फिर आपने देखना है चैनल्स के थ्रू दैट आपकी प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली किस तरह सेल आउट हो रही है. ऑनलाइन बिजनेस है तो ऑब्वियसली लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर क्या बोलते हैं, ऑर्डर पुट किया किसी फॉर्म के थ्रू या आपकी वेबसाइट के थ्रू, एंड देन वो कस्टमर्स ने खरीद लिया, आपने उनको डिलीवर करा दिया. अगर कोई सर्विस है तो आप या तो उनके पास जाके आपने वो सर्विस की, फॉर एग्जांपल यू हैव टू गेट योर मेंटेन या लैपटॉप मेंटेन आ रहे हैं, ऑनलाइन है, हाइब्रिड है, किस तरीके के. देन अगेन डिलीवरी वाली बात कि at the end of the day, how are you like delivering them the value proposition. And in Pakistan, mostly once a thing is sold, उसके बाद कोई कस्टमर के नहीं है in most cases. But जो अच्छे businesses होते हैं वो अपने साथ एक कस्टमर रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस कराते हैं. ठीक है. कस्टमर रिलेशनशिप डिफरेंट तरह के होते हैं. आपने देखा होगा कॉल सेंटर्स वगैरह, उनका काम ही यही होता है कि when customers call in, they talk to them, they try to help their situation. So that is one example. So the first thing that you need to ask yourself कि आपके कस्टमर्स आपके साथ किस तरह का रिलेशनशिप रखना चाहते हैं. ठीक है. Is this like a one-time transaction? Yeah, you want them to be repeat customers. For example, there is a startup at the Nest.io, which is like a startup incubator in Karachi. Maya's Closet के नाम पे. वो क्या करते हैं, वो बेबीज टू टॉडलर्स के कपड़े इंपोर्ट करते हैं and then they basically sell them through their website. So उन्होंने अपना customer relationship बहुत अच्छा रखा है कि when you order with them for the first time, they will write you a handwritten note कि वो अपने घर से business चला रहे हैं, and they also have 2 kids, so they realize how important it is for kids to wear comfortable clothes.
एंड आप क्या कहते हैं जो भी फीडबैक देना चाहते हैं उनको दें। तो जब और उन्होंने अपने नाम से उसको साइन किया हुआ होता है, वो कोई एक, तो जब आप उसको पढ़ते हैं यू फील अ कनेक्शन एंड दे नो दैट ऑब्वियसली if you're shopping for a baby, the baby is going to remain a baby for like at least 3-4 years. तो 3 साल तक आप उनके कस्टमर बने रह सकते, तो उनको 3 साल तक आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है। इफ देयर इज दिस डिफेक्ट तो उनकी इजी पॉलिसी होनी चाहिए फॉर एक्सचेंज, फॉर रिफंड, इस तरह की चीजें। प्लस आप ऑल्सो देख सकते हैं कि कौन से मे बी आपने कस्टमर केयर के तरीके ऑलरेडी स्टैब्लिश किए हैं। जैसे मैंने ये मेंशन किया कि एक कस्टमर केयर का तरीका है, और बहुत सारे तरीके होते हैं, बट आपको देखना होगा कि आपके बिजनेस के साथ कौन सा बेस्ट इंटीग्रेट होता है और ऑब्वियसली कितने पैसे चाहिए। सो कभी कभी ऐसा होता है देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर जिनको पता ही नहीं होता उनको क्या चाहिए। So they sometimes need personal assistance. Personal assistant and dedicated personal assistance में ये फर्क होता है। That personal assistant is like optional that you can offer them. Dedicated personal assistant में ये होगा कि आपको पता होगा कि if this kind of customer is coming in, so उनके लिए you'll have a dedicated staff to help them out. फिर self service है, automated service है, online service है। कम्युनिटीज, बहुत सारे बिजनेसेस ने ये स्टार्ट किया है कि वो अब अपने स्टार्टअप के अराउंड एक कम्युनिटी बना लेते हैं। उससे ये होता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि उनके कस्टमर्स उनकी चीजें ले रहे हैं, बट एक कम्युनिटी में वो और बहुत सी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप भी वहाँ मौजूद रह सकते हैं एज अ कम्युनिटी बिल्डर के यू एंगेज विद माय प्रोडक्ट्स, व्हाट्स रॉन्ग विद देम। सो दैट्स आल्सो वन वे टू स्ट्रेंथन अ रिलेशनशिप। को क्रिएशन, इसका मतलब ये कि आप अपने कस्टमर्स के साथ मिलके कोई प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है। जो उनका फीडबैक आ रहा है आप उसको लेके प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज को मॉडिफाई करें। सो इसको को क्रिएशन कहा जाता है। अब हम कर ली, तो हमने ये भी फिगर आउट कर लिया कि हम कौन से चैनल्स के थ्रू उन कस्टमर्स को पहुंच रहे होंगे और किस तरह का हम उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे होंगे। अब now we are at the big sort of reveal, which is revenue streams. So revenue streams क्या होती हैं? कहाँ से आपके पैसे आ रहे होंगे, और हमने ये तो अभी बात कर ली कि हम चीजें क्या बना रहे होंगे, हम उनको प्राइस किस तरह कर रहे होंगे। फिर हम ये देखेंगे कि लोग जो हैं वो ऑलरेडी उन चीजों के लिए कितने पैसे दे रहे हैं, ठीक है। उस जैसी सर्विसेज के लिए, उन जैसी प्रोडक्ट्स के लिए पेइंग, क्या वो अपने एक डेबिट कार्ड के थ्रू पे करते हैं, क्या वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करते हैं, क्या वो कैश पे करते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। बिकॉज मे बी इफ दे आर बाइंग ऑनलाइन तो वो अपना कार्ड भी यूज करते हो, तो दोनों चीजों के साथ साथ यू नीड टू नो के प्रेफरेंस उनकी क्या है। बिकॉज समटाइम्स आप एक शॉप में जाते हैं एंड व्हेन यू आर अबाउट, आप 1 घंटा आपने वहां पे गुजारा और जब आप चेकआउट करने गए उन प्रॉब्लम। So yeah, good job who's trying to save the multimedia. Making sure कि कस्टमर उस मोड में पे कर रहा हो जो कि इनका प्रेफरेंशियल मोड ऑफ पेमेंट है। एंड आपको इतना है कि हर डिफरेंट मोस्टली
उन्होंने डायरेक्ट कितना कंट्री। फॉर एग्जांपल हमारी जैसे डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की अलग है, फिर हम एक प्रोग्राम स्टूडेंट्स के साथ करते हैं तो हमारे स्टूडेंट बेस्ड प्रोग्राम्स की अलग रेवेन्यू, कैंपसेस के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर स्टूडेंट्स के साथ में उसकी एक अलग स्ट्रीम है। तो ये 3 तरह की डिफरेंट स्ट्रीम्स हो गई। सो दैट्स हाउ इट सॉर्ट ऑफ वर्क्स। तो आपने ये सोचना होगा कि आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स कितनी है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एसेट है आपके पास जिसको आप सेल करें, आपके पास कोई ऑटोमेटिव बिजनेस है जिसके अंदर आप गाड़ियां सेल करें, फिर यूसेज फी है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टार्टअप है क्लोजेट के नाम से, वो लोग क्या करते हैं, वो बेसिकली उनके पास बहुत सारे कपड़े हैं which you can rent, तो वो लेंडिंग रेंटिंग फी होती है। फिर बहुत सारे लोगों के पास चीजों के लाइसेंसेस होते हैं, होते हैं, कुछ लोगों की आप हैं तो वो यूसेज फी हो जाती है। देन आपने देखा होगा न्यूज़लेटर्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, इन सब की सब्सिडी, कोई आपका ऑनलाइन टूल हो उसकी भी सब्सक्रिप्शन फी होती है। एडवर्टाइजिंग से लोग पैसे कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं उनके पास आयोग एक पेज को इनमें आपका एड अपने प्लेटफॉर्म पे ठीक है। सो ये फिर उसके बाद जब आप अपनी कॉस्ट या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से पैसे कमा रहे होंगे, वो आपको देखना होगा कि किस आप मोड पे जाते हैं। 2 किस्म की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हैं, एंड अगेन प्राइसिंग मॉडल पे एक बहुत बड़ी वर्कशॉप हो सकती है, बट 2 तरह की होती हैं, फिक्स प्राइसिंग एंड डायनेमिक प्राइसिंग। अब इनके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग करनी है कि ठीक है यार, मेरे एक प्रोडक्ट बनाने में 1000 रुपए खर्च हुए और मैं इसमें 50% सॉर्ट ऑफ ऐड करके 1500 का सेल करूंगा। यह वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होती है कि ठीक है मेरे 1000 रुपए खर्च हुए बट मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बहुत वैल्यूबल है, सो आई विल सेल इट एट 5000। ठीक है, तो इस तरह की डिफरेंट मॉडल्स हैं प्राइसिंग मॉडल्स। फिक्स प्राइसिंग में होता है कि लिस्ट प्राइस एक दफा आपने ये प्राइस सेट कर ली, दैट्स इट, इट विल कीप फॉलोइंग अप एंड दैट वुड बी अबाउट इट। फिर फीचर डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने फोन्स में देखा होगा, फोन्स में जितने ज्यादा फीचर ऐड होते जाते हैं, जितना ज्यादा कैमरा इंप्रूव होता जाता है, उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। ठीक है, आपको एक बेसिक स्मार्टफोन 10,000 का भी मिलेगा और फिर एक आपको स्मार्टफोन 1 लाख 2 लाख का भी मिलेगा। सो इट्स ऑल अबाउट फीचर्स। साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं कस्टमर सेगमेंट डिपेंडेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं कि हाउ मच योर कस्टमर इज विलिंग टू पे यू। ठीक है, if I'm making again a clothing brand for working women, I know कि उनकी एक सैलरी रेंज क्या होगी और वो मेरे कौन कौन से कपड़े अफोर्ड कर सकती हैं। सिमिलरली जब आप आईफोन्स देखते हैं तो आईफोन्स में सारे फीचर होते हैं, इट्स ऑसम, बट वो एक कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, कस्टमर सेगमेंट दैट लाइक्स to be associated with the brand, a segment that likes to integrate all its services, चाहे वो उसका लैपटॉप हो, उसका फोन हो, all of that. फिर आपकी प्राइसिंग ऑल्सो डिपेंड करती है वॉल्यूम पे। जैसे आपने अक्सर देखा होगा होलसेल बिजनेसेस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो लार्ज वॉल्यूम में जब आप क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अ मार्जिन, आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो सकता है, बट अगेन रिस्क भी ज्यादा है। सो फिक्स प्राइसिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट। डायनेमिक प्राइसिंग क्या होती है? डायनेमिक प्राइसिंग ये होती है कि लेट्स से हम जैसे किसी दुकान में जाते हैं, ठीक है, और हम उनसे बार्गेनिंग कर रहे हैं, निगोशिएशन कर रहे हैं। सो ये डायनेमिक, क्योंकि ये चेंज हो रही है ना।
फॉर एग्जाम्पल किसी को मैं एक चीज 500 की बेच रही हूँ, किसी को चीज मैं एक 700 की बेच रही हूँ, बिकॉज आई कैन सी कि मेरा रूम कहाँ है ज्यादा से ज्यादा कोट करने का, ठीक है, और कौन सा मेरा एक थ्रेशोल्ड है कि मैं उसके बाद कम नहीं करूंगी, ठीक है। यील्ड मैनेजमेंट इसमें बेसिकली होती है कि बहुत सारे आपके पास प्रोडक्शन हुई हुई है एंड आपको चीजें निकालनी है। जैसे हमारी ब्रांड्स अब इतनी सारी सेल्स लगाने लगी हैं, पहले कोई इतनी सेल्स नहीं लगती थी। अब इंडिपेंडेंस डे सेल लगती है, ईद सेल लगती है, अभी ब्लेस्ड फ्राइडे सेल लगी हुई है, हर वक्त मैसेज आता रहता है सेल का। तो वो यील्ड मैनेजमेंट, अब उनके पास इतनी प्रोडक्शन है, कोई खरीद नहीं रहा, तो चलो सेल लगा दो, है ना। सो वो शायद कुछ और भी ले लें, या सेल सिर्फ 10 चीजों पे लगाएं कि वो लोग आपकी व्हाट यू कुड से उसमें एंटर तो होंगे ना स्टोर में, तो हो सेल वाली चीजें ना लें, वो दूसरी चीजें ले लें। तो इसको यील्ड मैनेजमेंट कहते हैं। रियल टाइम मार्केट, रियल टाइम में प्राइसिंग चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल डॉलर प्राइसिंग गई एंड फोन्स की प्राइसिंग, लैपटॉप्स की प्राइसिंग, दे आर ऑल डॉलर डिपेंडेंट। सो उस पे ये सब चीजें चलती रहती हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज कि जब आपने अपना रेवेन्यू डिफाइन कर लिया, अब आपने ये देखना है कि इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए एक्टिविटीज कौन कौन सी करनी है। And before we do this, like give me like 2 seconds to just ओके। तो अब हम बात करेंगे की एक्टिविटीज के ऊपर। सो किसी भी बिजनेस के लिए ऑब्वियसली आपने ये सोचना है कि हमने अपनी प्रोडक्ट के बारे में सोच लिया, हमने ये भी सोच लिया कि चैनल्स क्या हैं, कस्टमर रिलेशनशिप्स क्या होंगे और रेवेन्यू स्ट्रीम्स। बट इन सारी चीज़ों के लिए एक्टिविटीज क्या क्या लेनी होगी। इफ़ यू आर अ क्लोथिंग ब्रांड, आपको सबसे पहले तो जाके ऑब्वियसली मटेरियल सेलेक्ट करना है, फिर उस मटेरियल को प्रोक्योर करना है, फिर डिज़ाइन करना है। तो 3 एक्टिविटीज़ ये होंगी। डिज़ाइन के बाद आपने उसको स्टिच कराना है, ठीक है। सो 4 एक्टिविटीज़ ये हो गई आपकी। नाउ अब आपने ये देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आपके क्या क्या होंगे। अगर आपने सॉर्ट ऑफ उसको कहीं और स्टॉक कराना है, किसी और जगह रखाना है, तो आपको पार्टनरशिप करनी होगी। अगर आपको डिलीवरी सेटअप करनी है तो लेट्स से आपने बाई किया या टीसीएस के साथ अपना अकाउंट बनाना होगा। आप ऑनलाइन इसको सेल करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज सेटअप करना होगा, मे बी ई कॉमर्स वेबसाइट भी सेट करनी पड़े। फिर अगेन कस्टमर रिलेशनशिप के लिए कौन सारे कस्टमर्स की क्वेरीज के जवाब दे रहा होगा, डू यू नीड अ पर्सन, या आप ऑटोमेटेड उनके जवाब कर देंगे। फिर ये सारी चीज आ जाएंगी। फिर रेवेन्यू स्ट्रीम्स किस तरह से आ रही होंगी, बैंक अकाउंट सेटअप करना, ऑल दीज थिंग्स। सो यू कैन सी के प्रोडक्शन से लेके प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेके प्लेटफॉर्म नेटवर्क, कौन कौन पार्टनर्स हैं, ये सारी चीजें की एक्टिविटीज के अंडर आ जाएंगी। हमारी क्या की एक्टिविटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल ओपन मैक की एक एक्टिविटीज से पहले we need to like partner, ensure logistics, venue, food। फिर जो हमारा ट्रेनर है उसको पता है कि क्या करना है, करिकुलम रेडी है,
प्रेजेंटेशन रेडी है, देन हमारे अगर लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं सो मेक श्योर उनके लिए जूम सेटअप है, जो लोग फिजिकल ज्वाइन कर रहे हैं मेकिंग श्योर कि दे नो कि अब पेंडेमिक है, दे नीड टू डू द सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स। फिर जब वो लोग चले जाते हैं तो हम उनसे कस्टमर रिलेशनशिप, उनका फीडबैक लेके मेंटेन करते हैं। वी आस्क देम टू पुट स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम एंड रेवेन्यू स्ट्रीम्स हम इस तरह मैनेज कर रहे होते हैं दैट we give them lot of options। वो हमें easy पैसा से पे कर सकते हैं, वो हमारे अकाउंट में पैसे पे कर सकते हैं, या वो हमें कैश पे कर सकते हैं on the workshop day। So these are some activities that we take। कोई प्रोडक्शन बिजनेस होगा उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट सब कुछ आ जाएगा। So this is what happens। Now if we move further, अब इन एक्टिविटीज के लिए और इन वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए की रिसोर्सेज हमें क्या चाहिए होंगी। ठीक है, ये रिसोर्सेज हो सकती हैं फिजिकल, फॉर एग्जांपल हमें एक स्टोर सेटअप करना है, हमें वेन्यू चाहिए, हमें लेट्स से लोगों के साथ जाके किसी मॉल के अंदर बूथ सेटअप करना है, ये उस तरह की रिसोर्सेज होंगे। प्रोडक्शन में जाना है किसी चीज की, सो डू वी नीड एनी मशीनरी, एनी डिवाइस, हमें कोई टूल चाहिए, सो ये सब आपकी फिजिकल रिसोर्सेज हो गई। एक और चीज होती है इंटेलेक्चुअल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल हम एक सर्विस बिजनेस है एंड इफ यू आर हायरिंग ट्रेनर्स एंड एवरीथिंग, सो वो लाइक वी आर सॉर्ट ऑफ पेइंग देम फॉर देयर दिमाग। ठीक है, उनकी एक्सपर्टीज क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, तो वो एक इंटेलेक्चुअल रिसोर्स हो गई है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका डेटा उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ब्रांड के पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, दे अर्न थ्रू दैट। हॉलीवुड के अंदर, इवन बॉलीवुड में भी व्हेन स्टार्स बिकम पॉपुलर, वो अपना नाम कॉपीराइट करा लेते हैं, सो नोबडी एल्स कैन यूज इट। ठीक है, सो इस तरह की चीजें आर ऑल्सो sort of a resource। फिर human resource होती है which is going to be your team। तो आपको कितने टीम मेंबर्स चाहिए मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप के लिए। सो ये आपकी सारी ह्यूमन रिसोर्स हो जाएंगे। जो सोलो फाउंडर्स होते हैं वो अकेले ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, सो वो उनका बिजनेस चाहे फेल हो जाए, उस एक्सपीरियंस से इतना कुछ लर्न करते हैं कि उनको मल्टीटास्किंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाती है। ये बहुत आसान होता है कहना कि ओ फर्स्ट ट्राई विदाउट मनी, बट ऑब्वियसली व्हेन यू हैव मनी यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स मोर इजीली। शुरू में योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैन बी योर सेविंग्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, एंड बहुत सारे केसेस के अंदर इट्स योर सपोर्ट ग्रुप जो कि आपकी इनिशियल फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड करता है। ओके, सो अब आपने ये की एक्टिविटीज एंड की रिसोर्सेस डिफाइन कर ली। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू की पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स कौन कौन होंगे? इनमें आपके सप्लायर्स हो सकते हैं, वेंडर्स हो सकते हैं, जो लोग आपकी चीज़ें डिलीवर कर रहे होंगे, अगर डिलीवर नहीं कर रहे तो स्टॉक कर रहे होंगे, सो ये सारे लोग आपके की पार्टनर्स बन जाते हैं। नाउ यू नीड टू सी कि आप इन पार्टनर्स से दो चीज़ें क्या डिराइव कर रहे हैं, एक की रिसोर्स और की एक्टिविटीज़। की रिसोर्स ये हो सकती है कि आप अगर लेट्स से किसी स्टोर के साथ पार्टनर कर रहे हैं अपनी चीज़ें स्टॉक करने के लिए, सो उन्होंने आपको एक सॉर्ट ऑफ फिजिकल रिसोर्स दे दी। ठीक है, या फॉर एग्जांपल आप किसी डिजिटल मीडिया एजेंसी से पार्टनर कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, तो उन्होंने आपको इंटेलेक्चुअल या ह्यूमन रिसोर्स दे दी मार्केटिंग के लिए। आपने अगर एक अकाउंटिंग फर्म के साथ पार्टनर किया है तो उन्होंने आपको सॉर्ट ऑफ एक अगेन ह्यूमन रिसोर्स दे दी आपकी अकाउंटिंग सेट करने। ठीक है, फिर अगेन आपके की पार्टनर्स आपके लिए क्या की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपके लिए डिलीवरी कर रहे हैं, वो आपके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, वो आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ दिस। फिर दूसरी चीज़ ये होगी कि उन पार्टनर्स के लिए क्या मोटिवेशन है। ठीक है, क्या उनके बिजनेस ऑप्टिमाइज हो रहे हैं,
क्या वो कमीशन बेस पे आपसे पैसे अर्न कर रहे हैं, क्या वो आपसे अक्वायर कर रहे हैं कोई रिसोर्स एंड एक्टिविटीज जो कि वो भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन को यहाँ पे ट्रेनिंग स्पेस बनी हुई है, ठीक है, सो मैं उनको जाके कहूंगी कि लोग पार्टनर विद मी, क्योंकि जब मेरे स्टूडेंट्स आएंगे वो ये देखेंगे कि आपके पास और ट्रेनिंग्स हो रही हैं, सो यू नो दे विल आल्सो साइन अप फॉर योर ट्रेनिंग्स टू। सो इस तरह की चीजें फिर ये हो रहा है कि रिस्क रिडक्शन बन रही है, जैसे पार्टनरशिप हो रही है, सो सिर्फ एक बंदे का लॉस नहीं हो रहा, ठीक है, 2 लोगों का हो रहा है, तो there is sort of like this feeling of safety कि ठीक है यार इसमें और भी stakeholders हैं, so if we go down we'll go down together, and obviously if we go up then it will be like a lot safer and easier route. So key partners में ये चीजें आ गई। Now I know थोड़ा सा ज्यादा मोनोलॉग टाइप हो गया है और मैं यही बोले जा रही हूँ, बट हम अपने फाइनल पार्ट पे आ रहे हैं विच इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर, एंड देन वील सी कि आप लोग कोई मुझे बिजनेस बताएं और मैं उसका फिर मॉडल रियल टाइम में आपको बना के बताऊं। सो आप लोग सब अभी से सोचना स्टार्ट कर दें और कोई 3-4 लोग एक वॉलंटियर को लिखकर बता दें जो कि चैट बॉक्स में लिख दें, और फिर मैं उसके अराउंड एक बिजनेस मॉडल बनाऊं। मैं अपनी तरफ से बहुत ऑलरेडी एग्जाम्पल्स दे चुकी हूँ, सो मैं चाह रही हूँ कि अब आप लोग एग्जाम्पल दें ताकि इस तरह हम सब थोड़ा ज़्यादा एंगेज कर सकें। तो सोचना अभी से स्टार्ट कर दें जब तक कि मैं आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर बताती हूँ। सो रेवेन्यू स्ट्रीम जो था उसमें हमने बात की थी कि आपके पैसे कहाँ से रहे होंगे। कॉस्ट स्ट्रक्चर इज बेसिकली कि आपके पैसे कहाँ कहाँ जा रहे होंगे। सो आपको किस चीज़ की कॉस्ट आ रही है, रिसोर्सेज अक्वायर करने में कॉस्ट आ रही है या एक्टिविटीज करने में कॉस्ट आ रही है। रिसोर्स में जैसे मेजर कॉस्ट हमेशा ह्यूमन रिसोर्स की होती है कि आपको सैलरीज पे करनी होती हैं, फिर इक्विपमेंट की होती है, जगह की होती है, रेंट जो आप दे रहे होते हैं, फिजिकल रिसोर्स हो गई ना, सो ये सब होती है। फिर की एक्टिविटीज के अंदर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, आप डिलीवरी कर रहे हैं, हर चीज़ की एक कॉस्ट एसोसिएटेड है, एंड देन यू विल हैव टू सी कि कौन सी ज़्यादा एक्सपेंसिव है आपके बिजनेस के लिए। फिर जैसे मैंने अभी बात की थी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, सॉरी, कि लोग फीचर डिपेंडेंट प्राइसिंग करते हैं और कुछ लोग सेगमेंट डिपेंडेंट करते हैं। सो आपने ये देखना है कि आपका बिजनेस कॉस्ट ड्रिवन है या वैल्यू ड्रिवन है। जब एक बिजनेस वैल्यू ड्रिवन होता है तो वो वैल्यू क्रिएशन पे तो फोकस कर रहा होता है, प्लस दे कैन चार्ज एज मच एज दे वांट टू, ठीक है, because according to them they are creating value for their customers. कॉस्ट ड्रिवन जो होता है उसके अंदर ऑब्वियसली आप ये देखते हैं कि लोवेस्ट प्राइस, कंपेटिटिव प्राइस कौन सी हो, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आउटसोर्स हो, ऑटोमेट हो, कि आपका कम रिसोर्सेज खर्च हो रही हो, ज़्यादा चीज़ें बन रही हो, एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर इतना लीन हो कि आपके पैसे बनते ही जाए, ठीक है। ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाती हैं उसमें आपकी सैलरीज, रेंट्स, यूटिलिटीज, ये सब अवेलेबल होता है। वेरिएबल कॉस्ट बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जूम पे जैसे अगर शिफ्ट करना पड़ा चीज़ें तो जूम हमें बाय करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट कम अंडर द पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट कम अंडर द पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, सो हर बिजनेस की डिफरेंट हो सकती हैं। देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि अगर आप बहुत बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी ऑब्वियसली प्राइसिंग डिफरेंट होगी, या आपका स्कोप बहुत बड़ा है बिजनेस का, उसकी ऑब्वियसली प्राइसिंग डिफरेंट होगी। तो ये सारी चीज़ें जब हमने डिस्कस की थी सेगमेंटेशन पे, ये सब उस पर करती हैं। ओके, सो हमारे पास एक पहला आइडिया है आर्ट एंड पेंटिंग फ्रेम्स फ्रॉम होम डेकोरेशन। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और अभी क्या कहते हैं बहुत सारे लोग हैं जो अभी आर्ट टाइप बिजनेसेस में जा रहे हैं, तो इट्स अ गुड वन। थोड़े से और हमें आइडिया है ताकि मैं सॉर्ट ऑफ 2-3 की एग्जांपल्स दूं, ठीक है। तो अब हम अपने रिमेनिंग टाइम के अंदर एक कैनवस बना रहे होंगे और इन सारी चीज़ों को वी विल बी पुटिंग टुगेदर। जब तक आप
लोग मुझसे अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं, मैं एक कैनवस सेटअप कर लेती हूँ so that we can sort of fill it up. Just give me 2 minutes to set up an editable canvas. Okay, जी. ठीक है, so I'm going to share my screen now. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करना क्या चाहते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट है ना, उसकी एप्लीकेशन क्या होगी बिजनेस में. ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स, कॉन ज्वेलरी, ऑनलाइन ट्यूशंस. ओके, फिनटेक कंपनी का बिजनेस मॉडल. आई थिंक वो क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी सी जेनेरिक है, सो फिनटेक बहुत ही फोकस्ड हो जाएगा. बट इस एक्सरसाइज के बाद यू कैन मेक मी अ फिनटेक बेस्ड बिजनेस मॉडल एंड शेयर विद मी, एंड मे बी आई कैन कनेक्ट यू विद पीपल डूइंग फिनटेक, और वो आपको एक अच्छा फीडबैक दे सकते हैं. एंड यू नो द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड डूइंग इट राइट नाउ इज के व्हेन यू आर यंग, और जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं आपके पास टाइम बहुत होता है एक्सपेरिमेंटेशन का. तो अगर आपका कोई प्रोजेक्ट फेल भी होता है तो यू नो योर लाइफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट. थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, बिकॉज यू नो यूनिवर्सिटी के बाद आई डोंट नो आप सब क्या करते हैं. अगर कोई मसरूफियत नहीं है तो यू नो यू हैव टाइम टू डू दिस स्टफ. सो मैं अब आपसे एक टेम्पलेट शेयर कर रही हूँ, हम इसको फिल करेंगे. ठीक है, आई होप दैट यू गैस कैन सी दिस. अगर नहीं देख सकते तो मुझे बता दें तो मैं इसके फॉन्ट्स वगैरह इंक्रीज कर लूँ. हम बेसिकली एक वेबसाइट का बिजनेस मॉडल बना रहे हैं जहां पे हैंडीक्राफ्ट्स मिलते हैं. ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स में हम कर लेते हैं, लेट मी सी चैट बॉक्स के हमें आइडियाज कौन कौन से आए हैं. I cannot, I see this. ठीक है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स में वी कैन डू होम डेकोर ताकि फोकस्ड हो जाए. ठीक है, इसमें जितनी भी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे इसमें ज्वेलरी वाली चीज पे भी अप्लाई हो जाएगी, और भी डिफरेंट क्रिएटिव बिजनेसेस पे ये अप्लाई हो जाएगी. सो सबसे पहले हम अपने जाते हैं कस्टमर सेगमेंट्स के ऊपर. लेट मी जस्ट डू इट इन अ वे कि आप लोग दोनों चीजें देख सकें. Hold on. ठीक है, सो कस्टमर सेगमेंट में हम ये डालेंगे कि हम किसके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, कौन से हमारे इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स हैं. मैं ये जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है मैं इसको एक हाइब्रिड बिजनेस कंसिडर करूंगी,
जिसकी अपनी ऑनलाइन स्टोर भी होगी और जिसकी अपनी फिजिकल स्टोर भी होगी। और इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी ऐसे बिजनेसेस की जो एग्जिस्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे कस्टमर कौन है, ठीक है। वुमेन who are interested in home decor, ठीक है, एक ये कस्टमर सेगमेंट है हमारा। देन कंसिडरिंग, अच्छा दो चीजें, सारे हैंडीक्राफ्ट्स आप खुद बना रहे होंगे या आप दूसरे आर्टिस्ट और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मेकर के लोगों की चीजें भी स्टॉक कर रहे होंगे। अगर आप उनके साथ काम करें तो वो आपके की पार्टनर हो जाएंगे, ठीक है, और आप उनको एक रेवेन्यू वाली चीजें भी प्रोवाइड कर रहे होंगे। सो इट विल बी दैट, ठीक है। सो women who are interested in home decor, women who shop online, ठीक है, women who shop in malls and markets। फिर और आपका क्या कस्टमर सेगमेंट होगा? अच्छा, अब आप इसमें रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं कि डू यू नीड टू गो टू पीपल जो कि यू नो किसी ब्रांड के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, उनका एक सर्टेन हाई इनकम है, या यू वांट टू मेक प्रोडक्ट्स फॉर मिडिल क्लास पीपल हु हैव टेस्ट और वो अपनी चीज़ें डेकोर करना चाहते हैं और आप उनके लिए बजट फ्रेंडली चीज़ें बनाना चाहते हैं। तो लेट्स राइट कस्टमर्स looking for budget friendly decor, ठीक है। तो ये हमारे थोड़े कस्टमर सेगमेंट्स बन गए हैं। अब हम दूसरी चीज जो हमेशा करते हैं वो है वैल्यू प्रोपोजिशन। सो आप देख रहे हैं कि इन डब्बों को ऑर्डर में नहीं फिल करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड गोइंग, इनको इस ऑर्डर में फिल करना है जैसे मैंने बताया। वैल्यू प्रोपोजिशन आपकी क्या होगी कि हैंडक्राफ्टेड है, सो प्रिजर्वेशन हो रही है ह्यूमन टैलेंट की, ठीक है। सो इट्स यूनिक, बेसिकली मशीन का नहीं बना हुआ, उसमें सेंटिमेंट इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीजें ह्यूमन वैल्यूज आर अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। हैंडक्राफ्टेड है, प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन टैलेंट है, मेड विद लव है, ईच पीस इज यूनिक। तो अक्सर हैंडीक्राफ्ट्स में चीज़ ये होती है कि एक जो पीस बन गया उसके जैसा दूसरा नहीं होगा। सो जब वो आपके पास है, इट फील्स लाइक अ प्राइज पोजेशन के किसी और के पास ये नहीं होगा, क्योंकि हमें अक्सर टाइम बहुत बुरा लगता है कि हमारे जैसे कपड़े किसी ने पहने हो, हमारी जैसी चीज़ें किसी के पास हो। सो इट्स जस्ट ह्यूमन नेचर। सो ईच पीस वुड बी यूनिक। हम अपनी लेट्स से कलेक्शंस निकालेंगे। So collections based on seasons, festivals. So हमने अपनी winter, summer, spring decor collection निकाली, फिर हमने ये निकाली ईद collection, Diwali collection, Independence Day collection. Then what we will do, we will be supporting women who make these crafts. सो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है इन हैंडीक्राफ्ट्स के थ्रू। तो जो लोग आपके कस्टमर्स ये चीज़ें खरीद रहे हैं वो एक क्या कहते हैं एक गुड कॉज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि उनकी वजह से ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स के लोग जिनके पास चैनल्स नहीं है, अगेन चैनल्स की हमने बात की थी अपनी मार्केट्स प्रोडक्ट करने के लिए, तो वो इस तरह आपके बिजनेस के साथ पार्टनर करके कर सकते हैं, ठीक है। सो आपकी ये वैल्यू है, एंड देन यू आर ऑब्वियसली मेकिंग बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, फेयर ट्रेड कर रहे हैं। फेयर ट्रेड का मतलब ये होता है कि इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस वी सी कि जो कॉर्पोरेशंस और बिजनेसमैन वुमेन होते हैं वो लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। सो एक जमाने में ऐसा हुआ था कि जो हमारी खवातीन जो गाँव दिल्ली की बात की वही बना रही हैं और वो और हैंडीक्राफ्ट्स बना रही हैं, एंड पीपल वुड बाय देम एंड गिव देम लाइक 200 रुपए 300 रुपए पर पीस। बट वो चीज़ें कराची में लाके दे यूज टू सेल फॉर लाइक 5,000 10,000। सो ये फेयर ट्रेड नहीं है, क्योंकि जिसने बनाया है आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं।
सो फेयर ट्रेड आप अक्सर सुनते होंगे चीज़ों के अंदर, अगर नहीं सुना पहली दफ़ा सुने तो फेयर ट्रेड का मतलब ये होता है कि जिसने वो चीज़ बनाई है उसको एक क्या बोलते हैं फेयर कंपनसेशन, इक्वल कंपनसेशन मिले। तो लेट्स से यहाँ पे ये हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को कहें कि 50% जो है वो आपके क्राफ्टर्स को जाएगा एंड 50% आपके पास रहेगा, यू नो, टू मैनेज द बिजनेस एंड एवरीथिंग। सो बहुत सारी वैल्यूज आ गई हैं यहाँ पे। एंड या होम डेकोर का सारा होगा। होम डेकोर में वी हैव कुशंस, बेड शीट्स, बाथरूम एक्सेसरीज, रग्स, थ्रोज, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, फ्रेम्स, पेंटिंग्स, लेट मी write it here, frame and paintings, so all of it is here. अच्छा, वैल्यू प्रोपोजिशन के बाद हमने बात की थी चैनल्स, कि ये सारी चीजें, ये सारी वैल्यू इस कस्टमर को कैसे पहुंचेंगी, ठीक है। What I'll do, I'll write one customer segments, two value proposition, and the third one is channels, ठीक है। अब आप ये बोल रहे हैं कि आप इनको स्टॉक कराएंगे, लेट्स से हमारी पॉपुलर मार्ट्स में ये स्टॉक होंगी, फॉर यहाँ पे होंगी। आप एग्जीबिशंस में अपने हैंडीक्राफ्ट रखेंगे, एग्जीबिशंस विल बी पार्टिसिपेटेड इन। देन आपकी एक ऑनलाइन स्टोर होगी या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपना स्मॉल बिजनेस मार्केट करेंगे, फेसबुक ग्रुप्स में सेलिंग करेंगे, ऑल ऑफ दैट। तो ये आप 3 चैनल से अपने कस्टमर सेगमेंट को पहुंच रहे हैं। I'll see, yes, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे जितनी चीजें आप अवेयरनेस कर रहे होंगे सोशल मीडिया के थ्रू, डिलीवरी कर रहे होंगे, लेट्स से वाले जहाँ पे यू कैन से कि जो इस फेसबुक ग्रुप का, इस फेसबुक कम्युनिटी का या व्हाट्सएप कम्युनिटी या व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनता है, उसको हर नई प्रोडक्ट पे 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो इससे 2 चीजें हो रही है, एक आफ्टर सेल्स प्रोसेस भी चल रहा है और दूसरा एक कस्टमर रिलेशनशिप भी मेंटेन हो रहा है। तो मे बी वी कैन से के डिस्काउंट ऑन ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग से आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप कहीं और स्टॉक करा रहे हैं तो मे बी आपको वहाँ भी कमीशन देना हो, थोड़ा सा कमीशन शेयरिंग हो। सो डिस्काउंट आप ऑनलाइन शॉपिंग देंगे। आप एक कम्युनिटी बना सकते हैं, कम्युनिटी फॉर हैंड क्राफ्टर्स, एंड कस्टमर्स के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ डिलीवरी में टूट जाती है तो उसकी रिफंड एंड एक्सचेंज पॉलिसी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। कीप इट स्ट्रिक्ट, लाइक 7 डे के अंदर उन्होंने क्लेम किया तो या तो उनको रिफंड मिल जाएगा या आप उनको कोई दूसरी चीज़ एक अपॉलॉजी लेटर के साथ भिजा देंगे। तो ये सारी आपकी कस्टमर रिलेशनशिप में चीज़ें आ जाएंगी। इनके थ्रू आप अगर ऑनलाइन कस्टमर्स हैं आप उनको मंथली न्यूज़लेटर्स भिजा सकते हैं। अगर फिजिकल कस्टमर्स हैं तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको फ्लायर्स वगैरह दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। सो हमारा 4th हो गया है कस्टमर रिलेशनशिप। नाउ we have to move towards revenues, right? Let me check it. ओके जी, बिल्कुल रेवेन्यू स्ट्रीम्स में हम आ जाते हैं, ठीक है। हमें पैसे कहाँ कहाँ से मिल रहे होंगे? फॉर एग्जाम्पल हमें पैसे सबसे पहले तो अपनी प्रोडक्ट्स सेल करके मिल रहे होंगे। प्रोडक्ट सेल, हैंडी क्राफ्ट, देन वी कैन ऑल्सो रेंट आवर प्रोडक्ट्स। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनको ज़रूरत होती है सेट डिज़ाइन, ड्रामा का एक सेट हो रहा है, कोई किसी को अपना फोटोग्राफी प्रोजेक्ट करना है, किसी को चीज़ें चाहिए एक
शादी वगैरह के लिए, एंड वो अब तो छोटी शादियां होनी है तो उसकी डेकोरेशन के लिए, सो आप चीज़ें रेंट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन मे बी मेक अ रेंटिंग पॉलिसी। फिर और कहाँ से आपको पैसे आ सकते हैं? कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग बेसिकली ये होती है कि जब भी न्यू ईयर आता है या किसी एम्प्लॉय की बर्थडे आती है, सो ये जितनी कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं वो बेसिकली गिफ्ट देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ना, या अपने पार्टनर्स को, या जो भी उनकी कंपनीज उनके क्लाइंट्स होते हैं। सो वो बेसिकली अक्सर इस तलाश में होती हैं कि वो इस तरह के बिजनेसेस को सपोर्ट करें, हैंडमेड चॉकलेट्स, हैंड क्राफ्टेड फ्लावर बुकेज, इस तरह की चीज़ें। सो मे बी वी कैन सी कि हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग पे काम कर सकते हैं। Then how else we will be earning? So product based हमारी ये होगी। रेवेन्यू हम अर्न कर रहे होंगे कमीशन पे फ्रॉम मार्ट्स, ठीक है। फिर हम आई डोंट नो एडवर्टाइजमेंट का यहाँ सेंस नहीं बन करता। So these are some of the revenue streams that we can see here. अब हम आते हैं इन रेवेन्यू स्ट्रीम्स को अचीव करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। Let me just move my screen. Okay. So, फिफ्थ हमने रेवेन्यू कर लिया ना, ठीक है जी। Now we will be moving towards key activities and key resources. Window. Okay. We need handicrafts people. अगर तो हम खुद बना रहे हैं, so we need to make like enough कि हम अपनी एक कलेक्शन तो लॉन्च करें। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी विंटर कलेक्शन लॉन्च करें तो हम उसके अंदर कह सकते हैं कि विंटर कलेक्शन में हमारे पास 4 कुशंस के डिज़ाइन होंगे, 5 पेंटिंग्स होंगी डिफरेंट कैनवस साइजेस की, 3 बेडशीट्स के डिज़ाइन होंगे, 4 रली ब्लैंकेट्स के डिज़ाइन होंगे। इस तरह करके यू क्रिएट लाइक अ पैकेज, यू डिज़ाइन इट एंड यू देन मैन्युफैक्चर इट। सो सबसे पहले तो हम डिज़ाइन पे काम करेंगे, ठीक है। डिज़ाइनिंग कलेक्शन हो गई। दूसरी चीज़ पे हम बात करेंगे कि ऑब्वियसली हैंड क्राफ्टिंग दैट कलेक्शन। फिर उस कलेक्शन की फोटोग्राफी होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, लोगों को स्नीक पीक दे रहे हैं, ज़रा सस्पेंस और हाइप क्रिएट कर रहे हैं, सो प्रोडक्ट फोटोग्राफी इसको कहा जाता है। ई कॉमर्स फोटोग्राफी भी कहा जाता है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, ये आपका सारा काम हो गया। Sorry. Let me see if I could add insert 3 rows. Dun, 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 dun. चलें कहीं I'll add वो इंटरफेस पूरा होगा तो ठीक है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी के बाद वैसे डिजाइनिंग कलेक्शन से पहले आई एम अज्यूमिंग के सिर्फ इसमें आप कितने हैंडीक्राफ्ट्स बनाएंगे, ठीक है। यू नीड अदर पीपल टू जॉइन यू इन, सो यूल पार्टनर विद हैंडीक्राफ्ट्स पीपल, ठीक है। पार्टनरशिप कैंपेन होगी आपकी पूरी। फिर डिजिटल कैंपेन होगी आपकी मार्केटिंग की, प्रोडक्ट्स की। देन आपकी ई कॉमर्स स्टोर डेवलपमेंट होगी। उसके बाद ई कॉमर्स स्टोर में बेसिकली ये होगा कि आपकी पूरी वेबसाइट बनना। अब आप उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपको इंटरनेशनल शिपिंग देनी है कि सिर्फ लोकल शिपिंग देनी है। फिर आपके डिलीवरी पार्टनर्स कौन कौन होंगे, TCS होगा, बाइकिया होगा, ऑल दीज पीपल। So now we will be talking about key resources. Obviously you need human resource which is handicrafters, ठीक है। थोड़ा आपको फाइनेंशियल कैपिटल चाहिए होगा मटेरियल के लिए। तो की रिसोर्सेज में हम क्या लिखें? कैन वी स्टार्ट दिस बिजनेस अंडर 50,000 रुपीज? आई थिंक वी कैन। PKR 50,000 रुपीज चाहिए हमें, ठीक है। फिर घर का कोई स्टोर रूम और a warehouse for storing products
एंड देन मे बी विमेन डेवलपमेंट, उनको मैं चले पार्टनर में डाल दूंगी, ठीक है, ये हो जाएंगी। की पार्टनर्स में आपके, जो मैं बार बार हैंडीक्राफ्टर्स की बात कर रही हूँ, वो आपके की पार्टनर होंगे। की पार्टनर्स आपकी स्टोर्स होंगी जहाँ पे आप अपना स्टॉक कर रहे होंगे चीजें। डिलीवरी पार्टनर्स आपके की पार्टनर्स हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट लोग आपके की पार्टनर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं भी आए तो आपका काम चल सकता है। डिलीवरी पार्टनर के बगैर नहीं काम चलेगा, हैंडीक्राफ्टर्स नहीं होंगे तो नहीं काम चलेगा। स्टोर्स में ना भी रखा है तो हाँ ऑनलाइन पे खर्च करना होगा, बट अगेन हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम एक हाइब्रिड मॉडल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे बताएं और कौन हो सकते हैं की पार्टनर्स हमारे इस बिजनेस के अंदर। आपके वो हो सकते हैं, आप एम्बेसडर्स बना लें, फीमेल एम्बेसडर्स हो सकती हैं, और कौन हो सकते हैं, स्टूडेंट एम्बेसडर्स हो सकते हैं जो आपकी प्रोडक्ट्स को मार्केट करें और हर प्रोडक्ट पे उनको एक छोटा सा कमीशन मिल जाए। एंड देन एम्बेसडर्स हो गए, वुमेन डेवलपमेंट ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे, कमिटीज हैं, ये सारी हैं जो कि वुमेन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, जो कि ग्रांट्स देते हैं, जो कि थोड़ी बहुत फंडिंग देते हैं, ये आपके की पार्टनर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक अपनी कलेक्शन लॉन्च की, आप इन पार्टनर्स के पास गए और उन्होंने कहा कि देखिए मैंने 10 चीज़ें बनाई थी, दे ऑल वर सोल्ड आउट इन अ वीक और मुझे इतना फ़ायदा हुआ है एंड मैं अब इसको ग्रो करना चाहती हूँ, तो मुझे पैसों और सपोर्ट की ज़रूरत है। इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं, कभी आपको पैसे देते हैं, ग्रांट देते हैं स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, कुछ होते हैं जो बोलते हैं कि हम पैसे नहीं देंगे बट आपको जो सपोर्ट चाहिए आप वो हमें बताएं। तो अगर आपको एक वेबसाइट बनवानी है आप वो इनको बता सकते हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प चाहिए वो बता सकते हैं। और अब तो फेसबुक गूगल ने बहुत अच्छे कोर्सेज भी निकाली हैं कि आप खुद भी स्टार्ट में सीख सकते हैं। सो इन द बिगनिंग तो यही सोच होनी चाहिए कि सब कुछ खुद से करना है, ठीक है। या ऑब्वियसली अगर आपकी टीम है तो बस टीम मेंबर्स है, सब कुछ खुद करना है, एंड देन यू हैव टू सॉर्ट ऑफ ग्रो। नाउ लेट अस कम to the last part, which is the cost structure. So cost structure में आपकी क्या क्या चीज़ें आएंगी? So cost structure में obviously materials for crafts, for example frames चाहिए आपको for paintings, paints चाहिए for paintings, कपड़ा चाहिए for rally and cushion covers, then अगर आप embroidery कर रहे हैं so you need उसकी needles and everything. So materials हो गए crafts के, then delivery fee लगती है हर order पे। ये तो आप figure out कर सकते हैं कि आप इसको client से लेंगे या खुद पे कर रहे होंगे इसका। सो 70 रुपये से लेके ये 300 रुपये तक जाती है, डिपेंडिंग के शहर के अंदर डिलीवरी है, शहर से बाहर है, कितनी दूर है, ऑल ऑफ दैट। सो आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर में ये आ गया, डिलीवरी फी आ गई, देन आपके हैंडी क्राफ्टर्स का जो कमीशन होगा वो आ गया। प्रोडक्ट फोटोग्राफी अगर आप किसी और से करा रहे हैं, खुद से नहीं कर रहे, तो उसके पैसे आ जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग के अगर आप फेसबुक ऐड लगा रहे हैं, इसके पैसे आ जाएंगे। या आई थिंक बेसिक हम रखते हैं इसको, इतनी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, ठीक है। सो आई होप ये बिजनेस समझ आया होगा आप लोगों को। एंड अगर हम इसको अब पूरा होलिस्टिकली देखें तो हम ऐसा कस्टमर सेगमेंट मार्केट कर रहे हैं उन खवातीन का जिनको अपना घर हर वक्त चेंज करने की क्या बोलते हैं हॉबी होती है, वो हर वक्त नई चीज़ें रख रही होती हैं, एंड जिनको बजट होम डेकोर चाहिए होता है, जो ऑनलाइन भी शॉपिंग कर रही होती हैं और वो बड़ी बड़ी स्टोर्स में भी जाके शॉपिंग कर रही होती हैं। उनको हम बेसिकली दे रहे होंगे ऐसी हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स जो कि यूनिक होगी, जो कि हर सीज़न के लिहाज से होंगी, और इसके साथ साथ ना सिर्फ लोग वो चीज़ें खरीद रहे होंगे बट वो एक अच्छे कॉज में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे कि वो हैंडी क्राफ्टर्स को एक फेयर ट्रेड अमाउंट मिलने की काविश में हिस्सा होंगे। फिर ये वैल्यू उन सारे लोगों को मिलेगी हमारे ऑनलाइन स्टोर के थ्रू,
और हम जिन एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करेंगे और हमारी चीज़ें स्टॉक भी होंगी डिफरेंट चैनल्स के ऊपर। फिर हम अपने कस्टमर्स को, जो नए कस्टमर्स आएंगे उनको हम डिस्काउंट देंगे, जो हमारे पुराने कस्टमर्स होंगे उनको हम अपनी हर नई प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा डिस्काउंट दिया करेंगे ताकि रिपीट कस्टमर्स बन जाए वो। फिर हम एक हैंड क्राफ्टर्स की कम्युनिटी बनाएंगे जहाँ पे हम ये बात कर सकें कि पाकिस्तान में ह्यूमन हैंडमेड चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या किया जाए। फिर हम रिफंड एंड एक्सचेंज पॉलिसी अपनी बनाएंगे कस्टमर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हम उनको नई प्रोडक्ट्स के लिए न्यूज़लेटर्स एंड फ्लायर्स भेजाया करेंगे। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें लगता है कि हमारे पैसे आ रहे होंगे ऑब्वियसली अपनी प्रोडक्ट्स के थ्रू। फिर हम अपनी प्रोडक्ट्स बिजनेसेस को भी दे सकते हैं फॉर रेंटिंग। हम कॉर्पोरेट्स के साथ पार्टनर कर सकते हैं फॉर गिफ्टिंग। और फिर हम जहाँ जहाँ अपनी चीज़ें स्टॉक करा रहे होंगे हमें वहाँ से भी कमीशन आ रहा होगा। तो अब इन सारी रेवेन्यू स्ट्रीम को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले तो एक कलेक्शन डिज़ाइन करें, फिर उसके लिए मटेरियल प्रोक्योर करें, फिर उसको बनाएं और उसकी फोटोग्राफी करें, फिर एक अवेयरनेस करें। हम अपने लेट्स से कैंपस से स्टार्ट करें, अपनी फैमिली से स्टार्ट करें और सबको बताएं कि भाई हम ये हैंडीक्राफ्ट बिजनेस स्टार्ट करें। इसके साथ साथ हम एक ई कॉमर्स स्टोर भी बनाना स्टार्ट करें। अगर हमें लगता है कि हमें कोडिंग नहीं आती, डेवलपमेंट नहीं आती, ये काम हमें किसी और से कराना होगा, तो हम स्टार्ट के अंदर सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम वेबसाइट बनाएं। फिर हम करेंगे क्या, हम की रिसोर्सेज देखेंगे। हमें लोग चाहिए। अगर मैं एक अकेली हैंड क्राफ्टर स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं शायद हफ्ते में 2-3 से ज़्यादा तो चीज़ें हैंड क्राफ्ट नहीं कर सकती। सो आई नीड मोर पीपल। सो क्यों ना मैं ऐसे लोगों को जिनको ज़रूरत है एक इनकम स्ट्रीम की, मैं उनको यहाँ पे लूँ और उनको ऑफर करूँ कि हम यहाँ पे ये आपको सिखाएंगे, सॉरी आपकी हैंड क्राफ्टेड चीज़ें स्टॉक करेंगे। फिर मुझे ऑब्वियसली थोड़े से पैसे चाहिए शुरू की मार्केटिंग के लिए, थोड़ी सी करने के लिए। वो 50,000 से कम ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं इसमें लाखों रुपए लगाऊं और ये चले ना। ठीक है, देन मुझे एक स्टोर रूम या एक ऐसा डेडिकेटेड एरिया चाहिए जहां मैं सेफली अपने हैंडीक्राफ्ट्स को रख सकूं कि वो टूटे ना, उन पे कोई धब्बा ना आए, वो खराब ना हो, एंड दे कैन बी सॉर्ट ऑफ स्टोर्ड परफेक्टली। उसके बाद मुझे ये सारी चीज़ें करने के लिए पार्टनरशिप्स चाहिए। मुझे स्टोर्स के पास जाना होगा कि आप मेरी चीज़ें स्टॉक करें। फिर मुझे इंस्टाग्राम सेटअप करने के बाद किसी बाइक या टीसीएस लोगों के साथ पार्टनर करना होगा कि मेरी चीज़ें लोगों तक डिलीवर हों। फिर उसके साथ साथ मैं ये भी देखूंगी कि यार जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या कोई ग्रांट, कोई स्कॉलरशिप, कोई सपोर्ट ग्रुप मौजूद है। फिर मैं ये सोचूंगी कि यार मैं एम्बेसडर्स बना लेती हूँ, ख़वातीन को भी बना सकती हूँ जो घरों में रहती हैं, वो मेरी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेंगी और मैं उनको एक कमीशन दूंगी। फिर उसके बाद इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर ये आएगा कि मेरे सबसे ज़्यादा पैसे तो ऑब्वियसली मटेरियल्स पे जाएंगे। फ्रेम्स हो गए, पेंट्स हो गए, कपड़ा हो गया, एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें होंगी। फिर जो डिलीवरी फ़ी मैं दे रही होंगी, अगर तो वो मैं कस्टमर से ले रही हूँ तो बहुत अच्छी बात है। फिर हैंडी क्राफ्टर्स का कमीशन। Then you need to sort of do product photography, marketing में, ads में आप थोड़े बहुत पैसे लगा रहे हो। So ये हमारा बिजनेस मॉडल रेडी है फॉर अ हैंडीक्राफ्ट बिजनेस जो कि होम डेकोर करेगा। अब अगर आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, मैं आपको 2-3 ऐसे बिजनेसेस दिखाऊंगी जो कि ऑलरेडी ये काम करते हैं। ठीक है, सो लेट मी जस्ट ओपन देम ऑनलाइन। And it's good that some of you gave that example, क्योंकि अब मैं आपको local examples ही दिखाऊंगी for people who do this work. ठीक है, देखें ये पहले इन्होंने फेयर ट्रेड लिखा हुआ है, एथिकल, सस्टेनेबल एंड क्वालिटी। यानी जब आप ये चीज बाय कर रहे हैं सो आपको बुरा ना लगे कि जिसने इसको बनाया है उसको तो इतने पैसे नहीं मिल रहे। सस्टेनेबल है यानी इन्वायरमेंट पे मनफी असरात नहीं होंगे इसके, एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। सो वसीला के पास हैं वॉल डेकोर, ज्वेलरी, प्लांटर्स, फुटवेयर, कैमलिस स्किन की चीजें। इन्होंने दाची फाउंडेशन के साथ पार्टनर किया हुआ है। दाची फाउंडेशन हैंड क्राफ्टर्स के प्रिजर्वेशन पे बहुत काम कर रही है। यहाँ पे यू कैन सी कि सिंधी अजरक की चीजें हैं,
यहाँ पे नसीम अख्तर हैं जो फुलकारी एंड मुकेश का काम करती हैं, वो उनकी आर्टिजन हैं, ज्वेलरी प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेडिशनल फुटवेयर है, किचन एक्सेसरीज, टीकोजीज हैं, कोस्टर्स हैं, होम डेकोर देखें आ गया, यहाँ पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास, एवरीथिंग। वेरीफाइड एंड ट्रस्टवर्थी सेलर्स हैं, आपको धोखा नहीं होगा, परचेज प्रोटेक्शन है, हैसल फ्री रिटर्न पॉलिसी है। ये जो पूरा सेगमेंट है ना, ये इनका कस्टमर रिलेशनशिप का सेगमेंट हो गया। देन दीज आर द ट्रेडिशनल कार्ड, ठीक है। दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हाउ दाची गोज डिजिटल। इन्होंने वसीला के साथ पार्टनर किया एंड उनके साथ एक एग्जीबिशन की कि क्योंकि पेंडेमिक में बहुत सारे हैंडक्राफ्टर्स हैं हु वर लेफ्ट आउट ऑफ जॉब्स, तो उनको एक इनकम मिलता रहे। ठीक है, ये इनके फीचर। अब देखें, मैंने पार्टनरशिप की बात की थी, इन्होंने लम्स के साथ पार्टनर किया है, इनको US-8 का स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ग्रांट मिला है फॉर स्केलिंग अप। NIC लाहौर में ये इंक्यूबेटेड थे और अखुवत फाउंडेशन से भी ये पार्टनर कर चुके हैं। ठीक है, इनकी फिजिकल स्टोर नहीं है, दे आर ऑल डिजिटल। अब मैं आपको दिखाती हूँ पॉली एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, इनका भी है, वी सपोर्ट क्रिएटिव बिजनेसेस अक्रॉस पाकिस्तान टू सेल यूनिक प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन लोकल कल्चर्स एंड क्राफ्ट्स। आप लोग ये वेबसाइट्स नोट कर सकते हैं। अगेन, crafted by hand, generating income and impact, connections that ignite change। ठीक है, तो ये लोग ट्रेन भी करते हैं। अब यहाँ पे भी देखें, दे हैव कैंडल्स, बैग्स, होम डेकोर, कपड़े हैं। अच्छा, अब इनकी स्टोर्स भी हैं। सो आप स्टोर में भी जाके बाय कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। देखिए, होम डेकोर में इनका ये सब कुछ आ रहा है, बेड शीट्स, कैंडल्स, ऑल दीज थिंग्स। आई जस्ट शो यू अ लास्ट वन। ये कायल है, इन्होंने अभी अपनी कराची में भी एक स्टोर खोली है, थोड़ी सी फैंसी है, लाइक कुछ ज़्यादा फैंसी है, मगर यू नो अगेन ये भी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हैंड क्राफ्टेड की चीज़ों पे। सो हम इनकी आ जाते हैं फर्नीचर के ऊपर जैसे। सो इट्स अगेन ऑल हैंड क्राफ्टेड। ठीक है, ये टेबल है, ये लैम्प्स हैं, सारी चीज़ें। ओके, सो द रीज़न ऑफ शोइंग यू दीज एग्जाम्पल्स वर कि हमने शुरू में बात की थी कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वैसा बिजनेस और भी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, बट इट डज नॉट मीन दैट यू स्टॉप एट इट। पॉली एंड अदर स्टोरीज बहुत सक्सेसफुल है, वसीला भी बहुत सक्सेसफुल है, कायल की अब 2 स्टोर्स हो गई हैं, इस्लामाबाद एंड कराची में, एंड दे आर स्टिल डूइंग इट। सो मे बी यू शुड नॉट स्टॉप एट इट। आप इन लोगों को कांटेक्ट करें और इनको बोलें, और ये सब बहुत अच्छे लोग हैं, यू नो, जो पॉली एंड अदर स्टोरीज की भी जो फाउंडर हैं, एंड टेल देम, हे यू वांट टू स्टार्ट समथिंग वेरी स्मॉल स्केल, और आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, तो उनके एक्सपीरियंसेस से लर्न करें। सो हर चीज़ हमेशा खुद नहीं करनी चाहिए। आप जैसे नेस्ट आयो है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची है, सो यू नो यू कैन ऑलवेज फाइंड हेल्प एंड मेंटर्स। एंड सर्कल इतनी अच्छी वर्कशॉप्स करा रहा है, सो मे बी कोई एक वर्कशॉप डिजिटल मार्केटिंग की हो, कोई इस तरह की वर्कशॉप्स, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं। सो यू नो try to groom yourself and try to learn new skills every day. So this was, I think, today's session, and sorry for the technical difficulties and the delay in the start. I hope ये हेल्पफुल रहा होगा बहुत सारे लोगों के लिए जो सुन रहे हैं। आज बिजनेस मॉडल नहीं तो अगले 1-2 सालों में मे बी दे कैन थिंक ऑफ समथिंग, या शायद अपना FYP जब बना रहे हो तब उनको कुछ आइडिया हो इसके बारे में, and they can maybe make a business model out of it. So thank you, Circle, for having me, and thank you, Jinnah University. You have been a great audience, and thank you for giving all the ideas. जो लोग फिनटेक पे काम करना चाह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना चाह रहे हैं, वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, और हम ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में बात कर सकते हैं। एक कॉन्फ्रेंस भी हो रही है अभी, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस 021 डिस्ट्रप्ट, आप लोग उसका भी हिस्सा बन सकते हैं, एंड सी के कितने सारे आइडियाज़ हैं आउट देयर, और सब ने हमेशा छोटा स्टार्ट किया है।
ठीक है, 10 लोगों से 50 लोगों से स्टार्ट किया और फिर उन्होंने इम्पैक्ट किया हजारों लोगों को. So good luck for your classes, good luck for your projects. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Asma, for conducting. Thank you, Jinnah Sweka. University, for being here. I hope you all have time there. Okay, Allah Hafiz. Thank you so much. Also, if you want to on, everyone,